Can you just start the? Yeah. Okay. Okay. Good evening, everyone. Myself, Dr. Snehal Bansore, on behalf of IDA, warmly welcomes all of you all for today's program, which is Medical Legal Education Series in association with Doctors Risk Medical Legal Services. Just a quick overview of the topics that we will be covering today are medical legal liability with defense, criminal and civil liability, consent and practice medical certificates and other. Aman, हेलो, can आवाज you? नहीं आ रही है? Aman, can you just जी, आपकी unmute voice Dr. आ रही Snehal? है। Sir, you all are audible, sir. Snehal is not audible. She is speaking something and suddenly her voice is gone. Just check if it is muted. Yes, sir, let me check, sir. Hello. Yes, Ah, yes. yeah, audible. Yeah. Yeah, carry Am I on. audible now? Yeah, audible. Yeah. Just addressing the people present here, without whom this program wouldn't have been possible. Dr. T.P. Chaturvedi, President of IDA UP State. Dr. Sachin Prakash, Honorary Secretary, IDA UP State. Dr. Nageshwar Tripathi, CDH Chairman, IDA UP State. Dr. Deepak Shukla, CDE Chairman, IDA UP State. We also have Dr. Manish Verma from CDH Chairman, IDA Head Office. Handing over to Dr. Lakshmikant to overtake the further program. Thank you, Dr. Snehal. On behalf of Edelweiss Gallagher Insurance Broking, myself, Dr. Lakshmikant, I have my senior Mr. Uday Yadav with me and Dr. Arun Mishra, today's speaker. So before starting, I just want to brief little bit about Dr. Arun Mishra. Dr. Arun Mishra is a practicing advocate in Supreme Court and High Court both. He is a medical legal consultant. So he has dual degree. He has a medical doctor also and he is advocate also. So we feel he is the correct person to bring on board in IDA so that he gives some value add for our dentist fraternity. Along with he has also done his PhD in meditation. He has done LLM in crime field from Mumbai University, as well as his post-graduation in medicine and law and also in yoga. So you can say he's a materialistic as well as spiritualistic person. So combine both. So he has wide range of experience. From last more than I think 15 years, he is practicing medical legal services, and he has attended almost 14,000 plus medical legal issues. And based on such a huge medical legal issue, he has very vast experience and he has handled the cases of almost all the fraternity. So उसके अंदर डेंटिस्ट भी हैं, मेडिसिन वाले भी हैं, सर्जन भी हैं, कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं. इनके साथ मतलब almost we are associated with him from last 1 year officially, but we know each other from last 15 years. So he's the main idea ki we feel ki since today dentistry is more of a procedural kind of, so many times it happen ki चूक हो जाए वो समय पे how to secure ourselves, how to be safe, and what needs to be done in order to make us calm. So we have brought Dr. Arun Mishra's organization. We have associated his organization with IDA-HO, and we are starting this series. Initially, we have started with Pan India series. Then we thought state-wise different issues are there, especially UP, MP, अलग-अलग state के अलग-अलग issues रहते हैं, तो उसको कैसे हम overcome करें, कैसे अच्छे से handle करें. So this session is not for, if you see the end of the session, we will also emphasize on the professional indemnity policy, which is the part and parcel. But this is more of an education session, and I feel everybody will like it. About my organization, since now it is aware to each and everyone, we are associated with IDA-HO from last 4 years, and we are running a very different scheme, like group mediclaim हमारा चलता है जो अक्टूबर में जिसका renewal है, फिर
जनवरी और फरवरी में भी मेडिक्लेम का हिस्सा चलता है, तो 3 फेज का मेडिक्लेम हमारा चल रहा है। लास्ट ईयर कोविड का इंश्योरेंस हमने लॉन्च किया था, जिसका अभी ड्यू है, अगले महीने में ड्यू है, तो उसका भी बहुत जल्द हम कोविड इंश्योरेंस का रिन्यूअल का रेट और टर्म लेके हम सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तो ये सारी स्कीम, लेकिन इसके अलावा बहुत खास है पीआई इंश्योरेंस, जो एक डायरेक्टली 1-to-1 फर्टिलिटी को मदद होगी, इसलिए हम लाए हैं। सो नाउ आई हैंड ओवर टू डॉक्टर अरुण मिश्रा टू टेक अहेड फ्रॉम हियर। थैंक यू। Namaskar to all my colleagues, all my friends. Very, very good evening, and I really amazed that majority of people have shown their interest in such a topic which is need of the hour. दोस्तों, मैं सब कुछ सुन रहा था, मैं तो सिर्फ ऑडियंस था आप लोगों के सामने, एंड बहुत सारी चीजों का मैं विटनेस हो रहा था, बट आई कैन टेल यू, let it be COVID, let it be any of the pandemic, and or could be any of the waves. End of the day, हम डॉक्टरों को हर चीज का जवाब देना ही होता है। हम कितनी भी मीटिंग्स कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, अगर वो हमको एलिगेट करते हैं तो वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू देम एंड वी नीड टू डिफेंड देम। और इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है जो मैं पिछले 16 सालों से देख रहा हूँ, और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, अपने आप को एजुकेट करके मजबूत करना। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सफरिंग सिर्फ इसीलिए होती क्योंकि इग्नोरेंस होता है। और गौतम बुद्धा ने भी बोला है, भगवान गौतम बुद्धा की बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं कि ignorance is cause of suffering, and if you really want to cease a suffering, replace ignorance with the knowledge. अगर आपके पास नॉलेज आ जाए तो फिर आपको कोई एक्सटॉर्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई थ्रेटन नहीं कर पाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्रॉस द कंट्री मैंने कई बार देखा है कि पुलिस का कॉल आ जाए या एक पुलिस की नोटिस आ जाए, एक पुलिस की समन आ जाए, तो हमारे डॉक्टर घबरा जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे नीड टू डू एंड हाउ दे नीड टू आंसर। ट्रूली अगर उनको पता हो कि लॉ इज गुड फॉर देम व्हेन आई टॉक अबाउट एनी क्रिमिनल ऑफेंसेस और उनके फेवर में है, तो शायद उनका एटीट्यूड, बिहेवियर उन चीजों का हैंडल करने का डिफरेंट होगा। सिविल मैटर के कभी नोटिसेस आ जाए 20 लाख 50 लाख के, तो हम घबरा जाते हैं, वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड रिफ्लेक्ट टू दिस पीपल। बट मैंने एक चीज देखा है कि इफ यू नो दैट यू आर सेफ एज पर द कंट्रीज लॉ एंड यू गॉट अ गुड थिंग टू डिफेंड इन द कंट्री, यू कैन रियली मैनेज द शो। मेरे पास रिसेंटली लास्ट वीक, अभी मैंने आज ही उसका नोटिस फाइनल किया, सिर्फ टूथ ट्रीटमेंट में, सिर्फ एक दांत के ट्रीटमेंट में जहाँ इम्प्लांट पॉसिबल नहीं था, ब्रीजिंग किया गया था, सपोर्ट सिस्टम लेके डेंटिस्ट ने किया था, शायद वो पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं था, किसी और डॉक्टर के पास गया। नेचुरली प्रोफेशनल राइवलरी को तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा कोई डेंटिस्ट ने उस पेशेंट को भड़का दिया और मैटर इतना ज्यादा एग्जैगरेट हो गया कि वो पेशेंट ने 50 लाख डिमांड किया है नोटिस भेज के सिंपल टूथ ट्रीटमेंट। तो शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना, तो आपने कहाँ सुना होगा। आपके मेरे पास जो केसेस आते थे वो 10 लाख एंड 25 लाख के ऊपर नहीं जाते थे, अगर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है तो। बाकी पैथी का तो मेरे पास 30 करोड़ के भी केसेस है, 28 करोड़ के भी केसेस हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट डेंटिस्ट्री फील्ड, दिस वाज द इम्यून फील्ड टिल डेट। और जहाँ कंपनसेशन करना भी है तो भी आई हैव नॉट सीन दैट पीपल आर गोइंग बियॉन्ड सम लिमिट। मेरे पास एक हाईएस्ट टूथ एक्सट्रैक्शन का केस आया था, जहाँ टूथ के अंदर साइड टूथ कर्व था, रूट नहीं निकला था, which has leaded to infection। किसी और डॉक्टर के राइवल्टी की वजह से दैट मैटर हैज गॉन टू द कोर्ट ऑफ लॉ बैंगलोर का, जहाँ 10 लाख का केस था। अदरवाइज सारे केसेस को 15 लाख 18 लाख, और बड़ा इम्प्लांट है तो, या ब्रिजेस की बातें हैं, या कॉस्मेटिक डोमेन में किया, या मैक्सोफेशियल सर्जन ने किया हो, या कहीं और कुछ चीजें जो। लेकिन अगर आप कॉमन फैक्टर की बात करो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो या टूथ एक्सट्रैक्शन हो या टूथ क्लीनिंग हो या नॉर्मल प्रोसीजर्स की बात करो, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर बड़ा सदमा नहीं है। फ्रेंड्स, विद ऑल दिस बैकग्राउंड की नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। I have started my journey of educating doctors, sharing my knowledge. I don't say that I am a perfect person, but I say that whatever I acquired during my career in medical law, I really wish to share with my colleagues so that they can be really protected if at all any matter comes to them by themselves. And with that journey, I must have taken thousands of lectures across the country when it was open in COVID, with the seminars and now with the webinars.
on every pathy, every specialty, and we are continuing doing that only to educate a doctor with all good laws of the country. And before I start about educating the law, before I start about talking about the law, let me very committed way, with all responsibility, share with you all people that law is really good for the doctor. Law is really good for the doctor if doctor knows it. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लॉ बहुत ही प्रोटेक्टिव है हमारे डॉक्टरों के लिए, अगर डॉक्टरों को पता है तो। दोस्तों, प्रैक्टिकली हमारे डॉक्टरों को मेजॉरिटी केसेस में कुछ नहीं होता, क्योंकि हम इंटेंशनली कभी कुछ नहीं करते। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली हमारे से ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं जो शायद हमको करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते, और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्योंकि अगर आप मेरे से डेफिनेशन पूछोगे नेग्लिजेंस का, as per the law, as per the various judgment of the country and various act which talks about the definition, ये बहुत सिंपल भाषा में ये कहता है कि omission of something or commission of something which prudent doctor will not do in normal due course is a negligence. बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई चीज हमने ओमिट कर दी है जो दूसरा डॉक्टर शायद नहीं करता, या हमने कमिट कर दी है जो दूसरा डॉक्टर शायद नहीं करता, तो दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर नेग्लिजेंस। आई विल गिव अ एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेरे पास केस आया था टूथ एक्सट्रैक्शन का। डॉक्टर ने टूथ एक्सट्रैक्ट किया, पेशेंट उस नेक्स्ट डे उसके पास इन्फेक्शन लेके आई, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चालू किया, इन्फेक्शन स्प्रेडेड एंड अल्टीमेटली पेशेंट गॉट एडमिटेड टू टर्शियरी केयर सेंटर एंड डाइड बिकॉज ऑफ सेप्टिसेमिया। इश्यू बहुत छोटा था, लेकिन जब वो टर्शियरी केयर सेंटर में सब एडमिट हुई, तब पता चला शी वाज अ हाई डायबिटिक पेशेंट। एंड जब मैंने डॉक्टर से उस केस को जब मेरे पास आया, मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था सर पेशेंट हैज गिवन अ रॉन्ग हिस्ट्री दैट शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, नॉट इवन हाइपरटेंशन, नॉट इवन डायबिटीज। लेकिन मेरे डॉक्टर ने एफर्ट नहीं लिया उसका ब्लड टेस्ट करने में, क्योंकि पेशेंट पेन लेके आई थी। पेशेंट का था कि अभी निकालो, डॉक्टर को भी लगा कि मैं नहीं निकालूंगा तो अननेसेसरी पेशेंट और कहीं जाएगी। उस वक्त एक ऑप्शन था मेरे डॉक्टर के पास, जो एसजीटी कर सकता था। ग्लूकोमीटर हर एक क्लिनिक पे पड़ा होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट हर एक क्लिनिक पे पड़ा होता नहीं होगा, तो आपको रखना जरूरी है, क्योंकि लॉ इस चीज को बिल्कुल डिमांड करता है आपसे। एक सादा ब्लड शुगर कर लिया होता तो प्रॉब्ली ये इतना बड़ा इशू नहीं होता था, जो कि क्रिमिनल केस में गया। क्रिमिनल केस में 304 ए लगा हमारे डॉक्टर के ऊपर। वेल, वी आर डिफेंडिंग। मैं ये नहीं बात करता हूँ, मेरे पास तो 4 डेथ आए हुए थे लोकल एनेस्थीसिया के, कि पेशेंट को दिया एनाफिलेक्टिक शॉक आया डेंटल ट्रीटमेंट में। महाराष्ट्र के इसमें से 3 केस थे, लेकिन हर केसेस में एक ही चीज था कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था, चीजें जैसी गाइड की गई थी वैसे की गई थी, पीपल कैन बी सेफगार्डेड। वो एक डिफरेंट इश्यू है। लेकिन जो कॉमनेस्ट इश्यू है जो हमको करना चाहिए हम नहीं करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ट्रबलसम। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। मेरा एक डॉक्टर, उसके 70 इयर्स एज का गया अगेन फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग्स। इम्प्लांट के बारे में डेफिनेटली मैं बात करूंगा, रूट कैनाल के बारे में बात करूंगा। सिंपल चीज थी, वो पेशेंट ने डॉक्टर को अप्रोच किया। डॉक्टर इंटेलिजेंट था, शायद नॉलेजेबल था। उसने बोला कि सिंस यू आर ऑलरेडी गिविंग अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, you are already giving a history of diabetes and other thing, I want a fitness from some of the fitness because you are already 75 plus year. एक फिटनेस लेके आ जाओ, then I'll do the procedure. वो बंदा कल्याण, हमारे बॉम्बे का केस था, जनरल प्रैक्टिशनर के पास गया। हमारे बॉम्बे में जनरल प्रैक्टिशनर सारे 35 के हैं, और उसका जो फैमिली डॉक्टर था वो वाज बीएचएमएस और बीएमएस, आई डोंट नो, और उसने सिर्फ बीपी चेक किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया और फिटनेस करके भेज दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिटनेस my dentist has gone to do the procedure. दोपहर को 12 बजे उसने प्रोसीजर किया था, शाम को 6 बजे पेशेंट का डेथ हो गया। And then whole allegation gone on dentist. He wanted to protect himself with physical fitness given by the doctor. Now this doctor called me because the matter has gone to the police station. It was somewhere commented by some other doctor, which was referred by the police, that if at all patient was suffering from hypertension or suffering from diabetes, it is mandatory for the doctor, before giving any fitness, to go for a basic investigation to rule out other things. Only BP, blood pressure, or only a pulse rate, only a respiration rate cannot be a ground to give a fitness. वेरी कॉमन चीज। मैं ओमिशन की बात कर रहा हूँ, मैं ओमिशन की बात कर रहा हूँ कि जो हम ओमिट करते हैं, ओमिशन में फिर मैं आपको बताऊं, कई बार हमने ऑब्जर्व किया है, मेरे पास केसेस आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि
डेंटल ट्रीटमेंट किया गया, पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हुआ, पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में एंड पेशेंट का डेथ हुआ। वो इश्यूज में जब डीप रूटेड गया तो ये पता चला कि पेशेंट को ऑलरेडी ब्लड डिजीज था एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी थी। ये तो ब्लड डिजीज का पेशेंट था जिसका ब्लड स्टॉप नहीं हुआ एंड लॉस ऑफ ब्लड कुड लीड टू डेथ। लेकिन बहुत सारे केसेस में पेशेंट इज ऑन ब्लड थिनर, और ब्लड थिनर पे रहने के बाद भी हमको ये पता नहीं रहता है क्योंकि पेशेंट कभी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देगा आपको। और जब पेशेंट आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देगा तो यू नीड टू गो विद द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। बट टुमारो इफ आई गो टू द लॉ पीपल, मेरे अपोनेंट का जो एडवोकेट होगा और डेफिनेटली किसी न किसी डॉक्टर से गाइडेड होगा, वो डेफिनेटली क्वेश्चन रेज करेगा कि व्हाई ओमिशन वाज डन, व्हाई दिस थिंग वाज नॉट टेकन केयर, व्हाई इफ एट ऑल इट हैज बीन टेकन केयर, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ डॉक्टर। मैं कमीशन की बात करूं, बहुत बार ऐसा होता है हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, फाइल टूट जाती है। अब फाइल टूट गई तो हम पता नहीं क्यों उस वक्त पेशेंट को डिस्क्लोज नहीं करते। हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो कल को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है इन्फेक्शन और टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़े। हो सकता है पेशेंट पेन लेके किसी और डॉक्टर के पास जाए और वो एक्सरे में बताए देखो इसके अंदर फाइल रह गई थी, आपको डॉक्टर ने नहीं बताया। बहुत बार ऐसा होता है फाइल इनगल्फ कर लेता है, दैट कैन आल्सो लीड, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता, लेकिन दैट कैन लीड टू द प्रिपरेशन। बहुत बार हम नहीं बताते। तो ओमिशन ऑफ समथिंग और कमीशन ऑफ समथिंग, इफ इट ऑल डन, देन इट इज गोइंग टू बी नेग्लिजेंट। मैं ये सब चीजें आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? The house, I'm talking again, people who are ruling the house are the youngsters. आपके घर में और मेरे घर में, घर में डिसीजन मेकर हमारे बच्चे हो गए हैं जो 25 साल के और 30 साल के और 26 साल के हैं। आप सादा एक वॉशिंग मशीन लेने की बात करो, एक मोबाइल लेने की बात करो, आप नहीं डिसाइड कर पाते क्योंकि वो इंटरनेट पे जाते हैं, रिव्यू करते हैं और आपको बोलते हैं यही ब्रांड चाहिए। आप घूमने की बात करो, बच्चे जाके R&D करके बताते नहीं पापा यही जाना है। बेसिकली व्हाई? बिकॉज़ दे आर द किड्स हु आर इन इन्फॉर्मेशन। हम जो एज में हैं इसको हम इन्फॉर्मेशन एज बोलते हैं, जो कि सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। एक क्लिक के अंदर पीपल गेट इन्फॉर्मेशन। और यही बच्चे, यंगस्टर्स जो हमारे कंट्री का क्राउड है, 50% के ऊपर है। और ये आज की तारीख में डॉक्टर्स के रिव्यू देख के डॉक्टर के पास जाने लगे हैं। सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो हमारे डेंटिस्ट्री के कंट्रोल में है, वो डेंटिस्ट्री के कंट्रोल में आई हुई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का भी एडवर्टाइजमेंट देख के, रिव्यू देख के ये बच्चे अपने ट्रीटमेंट के लिए या अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए आपको अप्रोच करते हैं। सो व्हेन दे नो अबाउट whereabout of the doctors, they also know what are the remedies because they are treating themselves as a consumer. पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 15 साल 20 साल के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस जमाने में ट्रस्ट फैक्टर काम किया करता था। आपके ऊपर ट्रस्ट हुआ करता था। पेशेंट बोलता था जो डॉक्टर ने बोला वो भगवान है, एंड उस बातों को मान के वो आगे जाया करता था। अब ट्रस्ट फैक्टर से ज्यादा मनी फैक्टर काम करने लगता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने 1.25 लाख रुपए इम्प्लांट के लिए दिया है, मैंने 75,000 रुपीज इसके लिए दिया है, मैंने रूट कैनाल के लिए आपको 10,000 रुपए दिया है, आपने मेरे को चार्ज किया है, तो आई वांट 100% रिजल्ट। और ये चीजें जो बदल रही हैं तो केसेस बदल रहे हैं। रेमेडीज उनको रेडीमेड अवेलेबल है। ईमेल के ऊपर कंप्लेन आज की तारीख में अवेलेबल हो गई है। आप डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करो या यूपी के डेंटल काउंसिल की बात करो, आप सिंपल कंज्यूमर फोरा की बात करो, आप सिंपल पुलिस स्टेशन की बात करो, हर जगह कंप्लेन फाइलिंग का मेथोडोलॉजी हमारे कंट्री में बदल गया है। आप फिजिकली जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ईमेल डालना है, योर कंप्लेन विल बी रजिस्टर्ड एंड इंक्वायरी विल बी इनिशिएटेड। जब इतना इजी चीजें कर दी गई है तो नेचुरली लिटिगेशन बढ़ना है। एंड इन चीजों को अगर अवॉइड करना है, इन चीजों को अगर हम ओवरकम करना चाहते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ एज इट इज। एंड टुडे बिकॉज ऑफ all experience of mine, I could able to get connected to IDA, and definitely earlier I have taken for IDA multiple sessions, and when there was a seminar, even I have taken a webinar for IDA for MLC in dentistry, medical legal complaint in dentistry, and again
we could able to get connected. एक ही vision मेरा है कि if at all I have got some knowledge gathered during my experience of handling the cases, why not I share with my doctors? Friends, today in few time I'll share with you all the liabilities of medical law, including the defenses part in medical law. I am glad that majority of people who are the decision maker of IDA of UP are here. I am really appreciate because all the secretaries, president, and the influencer people are here. If you people get the answer about the law, I am sure आप अपने colleagues को ये बातें पहुंचा सकते हो, क्योंकि कल को आपके colleague को तकलीफ होती तो सबसे पहले वो एसोसिएशन के पास भाग के आता है, और एसोसिएशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है अपने बंदों को बचाने का. I am really thankful that at least majority decision makers are there in the lecture so that you can be a real game changer for your state, for your dental people. Friends, तीन तरह की लाइबिलिटी हैं हमारे मेडिकल ग्राउंड में. मेजर लाइबिलिटी, मैं छोटी लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेजर लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी है क्रिमिनल लाइबिलिटी. क्रिमिनल लाइबिलिटी जहां जेल पनिशमेंट की बातें होती है, जहां केसेस पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लोकल अथॉरिटीज में जाते हैं, और आज की तारीख में सबसे पहला केस वहीं जाता है बिकॉज पीपल रश देयर फर्स्ट. अगर उनको कुछ हुआ तो उनको एसएचओ दिखता है, उनको लोकल पुलिस स्टेशन दिखता है, तो तुरंत थाना भागते हैं और अपना क्लेम लॉन्च करते हैं. सेकेंड लाइबिलिटी आती है आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए कंज्यूमर कोर्ट की लाइबिलिटी, जहां कंज्यूमर फोरा है. पहले 1986 का एक्ट हुआ करता था हमारे यहाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर में हम लोग गवर्न किए जाते थे. लेकिन 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को हरी झंडी दी. 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, दोनों पार्लियामेंट हाउस ने पास करने के बाद, और 2020 जुलाई 20th को कैबिनेट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया. आज हम गवर्न कर रहे हैं या हम गवर्न हो रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रूल्स 2020. अगर आप ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे तो इट इज अ ड्रैकुलस. आई एम गोइंग टू गिव सम हाईलाइट अबाउट दैट एक्ट. लेकिन ये प्रो कंज्यूमर एक्ट है, टोटल प्रो कंज्यूमर एक्ट है. लॉ मेकर हैज पुट ऑल द पॉसिबल थिंग कवर्ड इन दिस एक्ट. जो चीजें अब तक हमारे दायरे के बाहर थी, हमारे मेडिकल फर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ, उनसे रिलेटेड चीजों की बातें कर रहा हूँ, वो चीजें भी नए एक्ट के अंदर गवर्न हो गई हैं. जैसे एडवर्टाइजमेंट, तो मैं आपको डेफिनेटली उनके कुछ हाइलाइट्स दूंगा कि व्हाट दिस एक्ट सेज व्हेन आई टॉक अबाउट द मेडिकल फर्टिलिटी ऑल टुगेदर. तीसरी लायबिलिटी आती है आपके डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की या यूपी डेंटल काउंसिल की, जो आपके मेडिकल रजिस्ट्रेशन को गवर्न करती है और वो एथिक्स को गवर्न करती है. लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज है, अक्रॉस द कंट्री मैंने कई मेडिकल काउंसिल्स के अंदर अपीयरेंस दिया है और मैंने देखा है कि मेडिकल काउंसिल एथिक्स को लेके जितनी सीरियस नहीं, उससे ज्यादा सीरियस और निग्लिजेंस को लेके है, और वो दोनों कंबाइन करके दे गिव अ ट्रीटमेंट, दे गिव अ ऑर्डर, एंड अकॉर्डिंगली इट इज बीन डन. तो दीज आर द थ्री लायबिलिटीज. तो लेट अस अंडरस्टैंड द लायबिलिटीज फर्स्ट. एक बार आपने लायबिलिटी को समझ लिया तो आपके लिए डिफेंसेस बहुत आसान हो जाएंगे. तो उन चीजों को डिफेंड कैसे करना. लायबिलिटी के अंदर मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल लायबिलिटी भले ही पुलिस स्टेशन की लायबिलिटी हो, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप जनरल क्लॉजेस उठा के पढ़ोगे इंडियन पीनल कोड का, आईपीसी का, जिसके सेक्शन के दायरे में हम लोग लिए जाते हैं, आप उसके जनरल क्लॉजेस के सेक्शन 81 के बाद के 78, 79, 80, 81, 87, 89 ये जो कंसेंट के बारे में बात करते हैं, बहुत ही क्लियरली इन्होंने लिखा है, एनीथिंग डन इन गुड फेथ, एनीथिंग डन इन अ गुड फेथ with the consent of the patient, even if there is a medical accident in the form of death, you will not be held responsible. तो यहाँ अगर आपने देखा होगा तो अनइंटेंशन की बात की गई, इंटेंशन आपका नहीं रहता, आपने कभी जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश नहीं की है, आपने कंसेंट लेके काम किया है. भले वो आपने लोकल एनेस्थेसिया दिया हो, पेशेंट का डेथ हो गया हो. मेरे पास एक पेडियाट्रिक्स का केस आया था 4 साल के बच्चे में, उसने जीए दिया था. जीए दिया, कोई गुनाह नहीं किया, जीए देना ही चाहिए. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उस डेंटिस्ट ने ओपीडी में अपने डे केयर सेंटर में जीए देके ट्रीटमेंट किया और पेशेंट का डेथ हो गया. अब क्योंकि you can't expect in a day care center all emergency drugs are going to be available.
कि आपके पास इधर चलो वॉइस ऑपरेटर पड़ा है, आपके पास इमरजेंसी है, आपके पास इंट्यूबेशन ट्यूब पड़ा हुआ है, आपने इमीडिएट इंट्यूबेट किया, आप वेंटिलेटर लेके बैठे, ओपीडी सेंटर में पॉसिबल नहीं है। और ओपीडी सेंटर में इतना बड़ा रिस्क लेने आप जाओगे तो यू आर टेकिंग योर रिस्क कैलकुलेटिंग द सेम, तो फ्रेंड दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। तो क्रिमिनल लायबिलिटी में अगर आपकी बात करूं तो दो चीजों को हमको जानना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट की जिंदा रहते क्या सेक्शंस लग सकते हैं और एक पेशेंट के डेथ के बाद क्या सेक्शंस लगते हैं। नॉर्मल सेक्शन 336, 337 और 338 इंडियन पिनल कोड का मेडिकल नेग्लिजेंस की बातें करता है कि एनीथिंग डन which causes simple hurt or grievous injury। अगर आप मेरे से ग्रीवियस इंजरी की बात करोगे तो टूथ इज अ ऑर्गन, उन्होंने क्या बोला है, लॉस ऑफ एनी ऑर्गन। तो फ्रैक्चर ऑफ बोन इज एज गुड एज रिमूविंग द टूथ और फ्रैक्चर ऑफ टूथ। सो उतनी चीजें भी ग्रीवियस इंजरी में आती है। अगर वो ग्रीवियस इंजरी में जाती है तो 338 सेक्शन हो जाता है, जो कि 2 years पनिशमेंट है। बिलेबल ऑफेंस से कुछ होता नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। पेशेंट का डेथ हो जाए, जैसे बहुत सारे केसेस मैंने आपको बताया, जैसे वो सेप्टिसीमिया की डेथ की बात की, जैसे मैंने आपको ब्लीडिंग के बाद डेथ की बात की, ऐसे लोकल एनेस्थीसिया दिया उसके डेथ की बात की। इन सब नॉर्मल कोर्स में सेक्शन 304 ए लगता है। सेक्शन 304 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड सेज causing a death without intention with a knowledge that particular thing can lead to death। मतलब एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, सॉरी, विदाउट इंटेंशन विद नेग्लिजेंट एक्ट, एक बड़ा कंपोनेंट है इंटेंशन का। तो आप तो विदाउट इंटेंशन हमेशा क्लेम करते हो, इन्होंने वो चीज को कवर कर लिया विदाउट, लेकिन नेग्लिजेंट। अब नेग्लिजेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि ओमिशन ऑफ समथिंग और कमीशन ऑफ समथिंग। अगर वो पैटर्न में आप फिट बनते हो तो 304 ए लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, भले आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में हैं। तो 304 ए डरने की बात नहीं है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि आपको केवल जामीन मिल सकती है, आपको डरने की जरूरत नहीं। और मैक्सिमम 2 years का पनिशमेंट है, मतलब 0 to 2 years जब बात करूं तो कोर्ट नॉर्मली, मेरे ध्यान में एक केस है जहां कैंसर सर्जन को कोर्ट ने 1 दिन का पनिशमेंट दिया था कि सुबह से शाम तक कोर्ट में बैठ जाओ, वो भी 18 साल के बाद। उसको भी अपील किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ओवर रूल कर दिया। कहने का मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सजा होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 304 जो है, थोड़ा सा आज की तारीख में मैंने बहुत सारे पुलिस स्टेशन में देखा है कि लोग अप्लाई करने लग गए हैं, इंटरप्रेट करने लग गए हैं। क्योंकि 304 क्या कहता है, causing a death without intention with a knowledge that particular thing can happen। with the knowledge का जो कंपोनेंट आ गया है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया केस कि बच्चे का 4 साल के बच्चे का मल्टीपल टूथ एक्सट्रैक्शन था, अंडर जीए लोकल क्लिनिक में किया गया, डे केयर सेंटर में किया गया। ये नॉलेज के कंपोनेंट में आता है कि मुझे नॉलेज है कि मेरे पास बैकअप फैसिलिटी नहीं है, मुझे नॉलेज है कि मेरे पास अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो संभालना नहीं है, मेरे पास नॉलेज है कि जनरल एनेस्थीसिया ऑलवेज रिक्वायर्ड आईपीडी सेटअप। ये नॉलेज होने के बाद भी मेरा इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन डेथ हो गई, देन इट इज गोइंग टू बी अ ट्रबलसम, क्योंकि ये एक ही सेक्शन है which attracts 10 years punishment non bailable offense। अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं 41A, जो बहुत ही कॉमनली भी यूज किया गया हमारा यूपी स्टेट में, तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, क्योंकि वहां एडवोकेट भी एक्टिविस्ट है, हर बंदा एक्टिविस्ट है। इसीलिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है नॉर्दर्न साइड में कि जैसे सीआरपीसी का अमेंडमेंट हुआ था 41A का, सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन मैंने देखा नॉर्दर्न साइड में हुआ है। और वो क्या कहता है कि कोई भी पनिशमेंट जिसके अंदर 7 साल के नीचे की सजा का प्रावधान हो, उसमें अरेस्ट का प्रावधान गवर्नमेंट ने हटा दिया है। इंक्वायरी करो, unless there is a very grossest thing you did not have to arrest। तो हम सब उस चीज में आ जाते हैं, लेकिन बारिंग दिस 304A और 304 प्लेन, 304 प्लेन डिफरेंट है। अब मैं अपने शब्दों पे फिर से आता हूँ कि why you did not have to worry with all the criminal cases। उसके पीछे रीजन क्यों बोल रहा हूँ? It is not that I am saying, it is a court which has given a beautiful judgment। 2005 में एक बढ़िया जजमेंट दिया था जेकब मैथ्यू के केस में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज भी 16 साल के बाद भी अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल है। क्योंकि उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड लिख दिया था हमारे ऑनरेबल जजेस ने कि जब तक गवर्नमेंट कोई लॉ लेके नहीं आती, तब तक दिस इज गोइंग टू बी द गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग द क्रिमिनल केसेस। टिल डेट वी डोंट हैव एनी गाइडलाइंस, we don't have any proper act in a medical, but this guidelines still hold good in court of law।
अब गाइडलाइन के अंदर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिफर किया है नेग्लिजेंस डन बाय द ड्राइवर एंड नेग्लिजेंस डन बाय द डॉक्टर, क्योंकि 304A ड्राइवर को भी लगता है कि वो गाड़ी चलाते टाइम किसी को डैश कर दे अनइंटेंशनली, तो सेम सेक्शन लगता है, हमारे डॉक्टर को भी सेम सेक्शन लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिवाइड किया है और कहते उन्होंने बोला कि टू फास्टन अ क्रिमिनल लायबिलिटी अगेंस्ट द डॉक्टर द ऑफेंस मस्ट बी ग्रॉस। ब्यूटीफुल वर्ड, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब व्हिच कैन बी सीन फ्रॉम द आईज। अब मैं उनके कुछ वर्डिक्स में उनके कुछ वर्ड्स बताता हूँ इस वर्डिक के अंदर के। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल डिफाइन किया है कि विद शिवरिंग हैंड, दैट इज अ फियर ऑफ लॉ, डॉक्टर कैन नॉट गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। उन्होंने एक वर्ड बोला है कि डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, ये प्रोफेशनल 100% रिजल्ट की गारंटी कभी नहीं दे सकते। एडवोकेट कभी नहीं बोल सकता मैं 100% केस जीतूंगा, डॉक्टर कभी नहीं बोल सकता कि 100% केस मैं बचाऊंगा या बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगा, बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल। उनका और एक ब्यूटीफुल वर्ड है कि मेडिकल साइंस इज द कॉम्प्लेक्स साइंस and complexity of the same is beyond imagination of medical practitioner. Hence, medical accident, even in the form of death, doctor must not be held responsible if due care has been given. अब word आप सुनिए, if due care has been given. अब due care का मतलब है almost every care which doctor can give it to the patient. कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉ ये कहता है कि अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया है और पेशेंट को एनाफिलेक्टाइड रिएक्शन आ गया है, आपने उसको रिकॉग्नाइज किया क्या? अगर आपने रिकॉग्नाइज किया है तो उसको रिसोसिएट करने की आपने कोशिश किया क्या? आपने उसको किसी टर्सरी केयर सेंटर पे खुद जाके दूसरे डॉक्टर के अंदर एडमिट किया क्या? ये सब ड्यू केयर में आता है। अगर ये सब आपने किया है तो even in a such a cases you will not be held responsible criminally. So beautiful. Furtherance to that, the same judgment says it advocates doctor नहीं है, judges medical field के नहीं है, पुलिस अथॉरिटीज मेडिकल नॉलेज नहीं लेके रखती। इसीलिए अगर कोई भी केसेस मेडिकल रिलेशंस में आता है, मेडिकल निग्लिजेंस में आता है, तो इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी टू रिफर इट टू एक्सपर्ट फॉर ओपिनियन। अगर एक्सपर्ट ओपनाइज करता है कि देयर इज इनप्रॉपर इनसफिशिएंट ट्रीटमेंट गिवन, देन पुलिस कैन गो अहेड एंड फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द पीपल, अदरवाइज नो। अब इतना सब प्रोसीजर एस्पेक्ट हमको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, तो आप मेरे को बताइए कितने केसेस आपने सुने होंगे जो हमारे डॉक्टरों पे क्रिमिनली किए गए हैं। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि बहुत बार अथॉरिटीज अपने पावर का मिसयूज करती है, और आपने अनुभव भी किया होगा, वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी अथॉरिटीज हो, और झूठा केस हमारे डॉक्टरों पे दायर हुआ है। मैं यूपी में भी कई केसेस जानता हूं जो मेरे तक आए हुए हैं, उनको मैं गाइड भी किया हूं। उन सब चीजों के बारे में बात करता हूं जहां ओवर पावर्ड हो जाता है, आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, यू आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्लियरली आपको प्रोटेक्ट करता है। मैं आर्टिकल 21 की बात नहीं करता हूँ, ये वेल नोन है लिबर्टी की, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 226 जो बहुत ही क्लियरली आपको पावर देता है कि द मोमेंट आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया है, प्रोसीजर एस्पेक्ट फॉलो नहीं किया गया है, पुलिस अथॉरिटी या किसी अथॉरिटी ने अपने पावर को मिसयूज किया है, आप तुरंत जाके रिट पिटीशन फाइल कीजिए। आपको पूरा पावर है उसको स्टे लेने का। या फिर अगर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अंडर 482 सीआरपीसी जाइए, इमीडिएटली क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन डालिए, आर्ग्यू कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अथॉरिटीज कैन मिसयूज देयर पावर बट कोर्ट कैन नॉट। कोर्ट का काम है लॉ को एज इट इज लोगों तक पहुंचाना और लोगों के अंदर से डर निकालना। आपको कोर्ट लॉ के बाहर नहीं जाता, और आपको कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि ये एक्ट में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, क्रिमिनली अगर आप में से जजमेंट पूछोगे तो मैं कई जजमेंट आपको दूंगा वेयर यू आर प्रोटेक्टेड। अगर मैं कंज्यूमर फोरा की बात करूं, सिविल लायबिलिटी की, सिविल लायबिलिटी की, यस, सिविल लायबिलिटी में क्या है, कोर्ट ने भी बोला कि इवन सिंपल नेग्लिजेंस कैन गो टू द कंज्यूमर फोरा। कंज्यूमर फोरा, मैं आपको फिर से बोलूं, नया लॉ बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। नए लॉ के अंदर पहली बार एडवर्टाइजमेंट को भी गवर्न किया गया है। अभी तक हम लोग
हमारे डेंटिस्ट्री फील्ड में मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ हमारे डेंटिस्ट कॉस्मेटिक डोमेन में जा चुके हैं, कॉस्मेटिक फॉर्म को अडॉप्ट कर चुके हैं। मैक्सोफेशियल सर्जन की बात करूं या मैं ऑर्थोडोंटिस्ट की बात करूं, ये सारे के सारे कॉस्मेटिक डोमेन में जा चुके हैं। अगर मैं सादा इम्प्लांट की बात करूं या मैं सादा आपको ब्रिचिंग की बात करूं या मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, ब्रेसेस लगाने की बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ चीजें हमको ये डिफाइन करनी पड़ती है कि ये कॉस्मेटिक था, ये ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक को, दो चीजों को हमको डिफाइन करना पड़ता है। और बहुत बार हमने देखा है कि कॉस्मेटिक डोमेन्स जो हैं हम बाय डिफॉल्ट अडॉप्ट कर चुके हैं, इज नॉट बीन कवर्ड अंडर वेरियस इंडेमनिटी पॉलिसीज आल्सो। और इसके अलावा कंज्यूमर को हमारे दरवाजे तक लाने के लिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार एडवर्टाइजमेंट का फायदा उठाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि सिर्फ डॉक्टर गवर्न थे एडवर्टाइजमेंट में, अनएथिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि काउंसिल के पास उनका रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। लेकिन तो आवाज किया जा सकता आवाज नहीं आ रही है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आवाज आपकी मिस हो गई थी। बीच में एक मतलब 2-4 सेंटेंस नहीं आई अभी से। वापस रिपीट करता हूं मैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, ये 2019 में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया एडवर्टाइजमेंट का। ये एडवर्टाइजमेंट का चैप्टर जो ऐड किया गया है, ये उन लोग को गवर्न करता है जो काउंसिल से भाग जाते थे। जैसे मेडिकल सेंटर हो गया, आपका कॉस्मेटिक सेंटर हो गया, आपके प्रोप्राइटरी कंसर्न हो गई, आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, या जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आते हैं, नी रिप्लेसमेंट और XYZ, तो वो लीवर रिप्लेसमेंट, तो वो जो कॉर्पोरेट्स थे अभी तो वो बचते थे। नए लॉ ने उनको भी अपने अंदर ले लिया है। नया लॉ कहता है कि अगर आपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया है तो यू हैव टू पे फॉर इट। और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 10 लाख की पेनल्टी रखी है, सेकेंड पेनल्टी 50 लाख की रखी है, अप टू 2 इयर्स जेल पनिशमेंट रखा है। अब डिफेंड तो हमको करना होगा कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है, उसको सामने वाला। लेकिन एक बहुत अलग चीज मैं आपको बता दूं, पहले क्या हुआ करता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंसिडरेशन वर्ड बहुत रोल प्ले किया करता। कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मैं ट्रीटमेंट लेने आया हूं, आपने मेरी ट्रीटमेंट किया है, मैंने आपको पैसा दिया है, तो ही मुझे राइट है आपके अगेंस्ट में केस करने का। लेकिन नया लॉ क्या बोलता है, एनी पर्सन इन अ कंट्री, एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री who come across any advertisement and he feels that it is misleading, जैसे टीवी पे हम लोग ऐड देते हैं, मतलब फिल्म स्टार्स लोग एंडोर्स करते हैं, या 100% गारंटी ऑफ व्हाइटनिंग ऑफ स्किन, आप गोरेपन का और बहुत सारे दागों का, बहुत सारे क्रीम का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप और हम या कोई भी सिटीजन अगर उसको लगता है कि ये अनऑथेंटिक है, आपको लगता है ये मिसलीडिंग है, तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। और इसको गवर्न करने के लिए नए एक्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्रिएट की गई है, जिसका काम है वॉच डॉग का, मतलब इन्वेस्टिगेट करेगी, पनिशमेंट देगी। यहां तक कि बिफोर आफ्टर की जो हम बातें करते हैं, स्माइल क्लिनिक में बिफोर आफ्टर दिखाते हैं, बाकी चीजों में बिफोर आफ्टर दिखाते हैं, तो ये एंडोर्सर कहे जाते हैं। एंडोर्सर जिन्होंने एंडोर्स किया है आपको, ये भी लायबल है नए लॉ के अंदर। नया लॉ ने एक दूसरा बहुत बड़ा बदलाव लाया है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। ये नया लॉ क्या करता है कि कंप्लेनेंट कैन फाइल अ कंप्लेन वेयर ही रिसाइड और वर्क फॉर द गेन, मतलब फाइलिंग ऑफ कंप्लेन का डोमेन चेंज कर दिया है। मान लो आप वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं, मान लो आप लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, और आपके पास पेशेंट कहीं प्रतापगढ़ से आया होगा, या आपके पास कहीं पेशेंट जौनपुर से आया होगा और आपसे ट्रीटमेंट लेके गया होगा, तो वो पेशेंट आपके अगेंस्ट में जौनपुर में या प्रतापगढ़ में भी केस फाइल कर सकता है। अगर वो बंदा बॉम्बे का है, किसी काम से वहां गया है, और उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ बॉम्बे का है, भले यूपी का निवासी हो, लेकिन रेसिडेंशियल प्रूफ बॉम्बे का है, तो आपके अगेंस्ट में बॉम्बे में भी केस कर सकता है। ये माइग्रेंट वर्कर किसी भी स्टेट के हो, अगर आपने ट्रीट किया है, वो माइग्रेंट वर्कर अगर आपको चाहे तो अपने स्टेट में केस फाइल कर सकता है। कहने का मतलब नाउ केस इज गोइंग टू बी
अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द डॉक्टर। कोविड के बाद आप सभी देखने लग जाओगे, इट इज गोइंग टू बी लाइव। और ये एक्सटॉर्शन का एक नया धंधा चालू हो जाएगा, क्योंकि आप बॉम्बे आके डिफेंड नहीं करोगे, आप उड़ीसा जाके डिफेंड नहीं करोगे, आप कलकत्ता जाके डिफेंड नहीं करोगे, तो क्या होगा? आप खुद बोलोगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो, मांडवली करो, निपटाओ, 10 लाख मांगा है 2 लाख दो। ये चीजें फ्यूचर में पॉसिबल है, मैं नहीं बोलता होंगी, लेकिन पॉसिबल है अगर कुछ एंटी सोशल एक्टिविस्ट ने लॉ को मिसयूज करना चालू किया। वकील साहब हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आज मुझे चल रहा है, इतना तगड़ा बता रहे हैं। डॉक्टर मौर्य जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन आंसर हम लेंगे सभी के लिए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ आपके साथ हर नॉलेज को शेयर करने आया हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को सब कुछ नॉलेज होगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन से मैं भी सीखूंगा कुछ, और अगले सेशन में कुछ और कलीग को कुछ नया ज्ञान देके जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो तो हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम इंटरेक्शन नहीं करें, उसी में सीखें, क्योंकि मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूँ। आप मेरे से क्वेश्चन पूछे, हर क्वेश्चन में मैं आपको अपना नॉलेज शेयर करूं और सीखें, या फिर मैं आपको पहले बेस बता दूं और फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछें। आप नहीं, जैसा आप बोलेंगे। आप करिए, आप पहले बता दीजिए हम लोगों को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताइए। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है दोनों को। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर चतुर्वेदी, आई एम ग्लैड। मैं बता रहा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बड़ा बदलाव लेके आया हमारे कंट्री में, और ये लॉ लॉन्च हो चुका है। तो इसी के अंदर मीडिएशन करके एक चैप्टर डाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर इनिशिएट किया है नए लॉ में। मीडिएशन का मतलब क्या हुआ है कि कई केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल होने की मुद्रा में रहते हैं। ऐसा रहता है कि चलो यार खत्म करो, 10,000 देके। लेकिन पहले क्या था कि आपने 10,000 दिया, 15,000 दिया, ना आप क्लेम कर पाते थे, ना आप किसी को बता पाते थे। कल को आपको ये भी डर रहता था कि यार पेशेंट वापस तो नहीं कंप्लीट कर दे। तो अभी कोर्ट ने ही उसको ला लिया है कि अगर मान लो कोई केस कोर्ट में जाता है, तो सबसे पहले जज उसको मीडिएट कराने की कोशिश करता है, और दोनों पार्टी को मीडिएशन सेल में भेजेगा। मीडिएशन सेल में तीसरा जज के रूप में बैठा हुआ बंदा दोनों पार्टी से बातें करके उस चीजों को वहां खत्म करने की कोशिश करेगा। लॉ के अंदर है ये, और दोनों का एमिकेबल सेटलमेंट हो गया तो वो ऑर्डर पास करेगा। वो ऑर्डर कंज्यूमर कोर्ट के बेंच पे जाएगा, और एक बार वो जज ने साइन कर दिया तो उस ऑर्डर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं है, मतलब मैटर वहीं खत्म। So it was a beautiful move done by the lawmaker. Lawmaker ने बहुत अच्छा मूव डाला है। उन्होंने एक नया मीडिएशन सेल लॉ के अंदर ही क्रिएट कर दिया है कि जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थे अब इन कोर्ट होने लग जाए तो लोगों का फायदा होगा। नया कंज्यूमर कोर्ट, नया कंज्यूमर लॉ बहुत ज्यादा बदलाव लेके आया। मैं आपको पूरा लॉ सिखाने जाऊंगा तो मुझे पूरा 2 सेशन लेना पड़े, 1 सेशन तो कम पड़े, क्योंकि मैंने सीपीए एक्ट पे, हाँ, अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो डॉक्टर्स रिस्क मेडिको लीगल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, या डॉक्टर अरुण मिश्रा या एडवोकेट अरुण मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। आपको मेरे हंड्रेड्स ऑफ सेशंस अलग अलग टॉपिक पे मिलेंगे। उसमें सीपीए एक्ट पे मैंने काफी बातें की है, हर सेक्शन के बारे में बात की है, आप उसको समझ जाओगे इन डिटेल एंड डेप्थ। मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ ब्रॉड वे में, कि इन सब चीजों को आपको मालूमात होगी तो अपने कलीग को आप बता पाओगे, अपने कलीग को संभाल पाओगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया उन्होंने, भयंकर बड़ा बदलाव लाया है। और वो बदलाव क्या है कि उन्होंने लोकल कोर्ट को बड़ा पावर दे दिया है। पहले क्या था पुराने लॉ में, आपका जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट हो, या आपके प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट हो, या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट हो, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर था सिर्फ 20 लाख तक के केस को हैंडल करने का। लेकिन नए लॉ ने क्या बोला है कि अब कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम, छोटा वाला कोर्ट को 20 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ तक के पावर को दे दिया है केस हैंडल करने के लिए। 1 करोड़ से 10 करोड़ का पावर स्टेट कमीशन को दिया है, जो आपके हेडक्वार्टर में जैसे लखनऊ में बेंच पे होगा, स्टेट कमीशन बेंच पे होगा। और एनीथिंग अबाउट 10 करोड़ इज गोइंग टू बी दिल्ली, दिस इज नेशनल कमीशन। पहले ये 20 लाख 1 करोड़ के ऊपर वाला दिल्ली जाता था, और 20 लाख से 1 करोड़ तक। अब इसका बहुत बड़ा जो नुकसान होने वाला है मेडिकल फर्टिलिटी के लिए, कि एडवोकेट को तो उतना ही हार्ड वर्क है, उतनी ड्राफ्टिंग करनी है, उतने डॉक्यूमेंट करना है, वही चीजें करना है। तो 20 लाख की जगह 50 लाख लिखने में वो शर्माएगा नहीं, घबराएगा नहीं, क्योंकि बातें तो वही करनी है। फिर कोर्ट हो सकता है 50 लाख की जगह 5 लाख दे। पहले क्या था, 20 लाख के ऊपर जब केस हाथ से निकलता था तो एडवोकेट भी क्या करता था, 20 लाख के नीचे ही फाइल करता था कि केस जाने नहीं देना चाहता था।
दूसरा क्या बोला है, एक बहुत ब्यूटीफुल वर्डिंग लॉ मेकर ने डाल दिया। लॉ मेकर ने लिखते लिखते ये लिख दिया, फॉर फाइलिंग द केसेस द कंसिडरेशन पेड विल बी द गवर्निंग प्रिंसिपल। अब कंसिडरेशन पेड की जब मैं बातें करूं तो मेडिकल फर्टिलिटी में, मैं खास कर डेंटल की बात करूं तो डेंटल में 100% केसेस कंज्यूमर फोरम में जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन पेड अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो ही स्टेट कमीशन में जाएगा। कहने का मतलब है कि मैंने आपको 5 लाख रुपए पे किया है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया और मैंने टर्शियरी केयर सेंटर का बिल दिया है, और मैं आपको ऊपर 2 करोड़ की केस करना चाहता हूं या 5 करोड़ की केस करना चाहता हूं, तो मैं स्टेट कमीशन नहीं जाऊंगा, मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट फोरा जाऊंगा, क्योंकि मेरा कंसिडरेशन पेड कितना है, सिर्फ 5 लाख रुपए। तो मेडिकल फर्टिलिटी में 1 करोड़ का बिल जब होगा तभी वो ऊपर के केस में जाएगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो 99% केसेस मेडिकल फर्टिलिटी के आपको कंज्यूमर फोरम में ही मिलेंगे। तो आपको ज्यादा डिपेंड, और उसका दूसरा प्रिकॉशन कि मान लो ओडिशा में केस चले जाए, मान लो महाराष्ट्र में आपका केस आ जाए, तो आपके लिए तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां लोकल लैंग्वेज चलती है। सारे छोटे कोर्ट में लोकल लैंग्वेज, जैसे हमने यूपी में देखा होगा, यूपी में अगर लोअर कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओ तो बात अलग है, लेकिन जितने लोअर कोर्ट में जाओगे लोकल लैंग्वेज हिंदी चलेगी। वैसे तमिलनाडु में तमिल चलेगी, महाराष्ट्र में मराठी चलेगी। हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा एडवोकेट ढूंढने के लिए, क्योंकि लोकल कोर्ट में लोकल लैंग्वेज हमारे लिए और बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई बार तो ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन लोकल लैंग्वेज में हमारे लिए तकलीफ की बात हो जाती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें चैलेंजेस है। ये चीजों के लिए मैं आपको इतनी बोलूंगा कि जैसे क्रिमिनल कोर्ट का डिफेंस आपको मैंने बताया कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज लॉ इज वेरी गुड फॉर यू, वैसे ही कंज्यूमर कोर्ट के डिफेंस के लिए इतना ही बोलूंगा, कुछ भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं। एक अच्छी प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी निकाल के रखो। अगर आपके पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है तो किसी भी तरह का केस कंज्यूमर कोर्ट में आपके अगेंस्ट में जाने दो, आपके लिए पूरा प्रोटेक्शन अवेलेबल है। क्योंकि अब कस्टमाइज्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी भी आ गई है। पहले जो जनरलाइज्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सक्लूडेड रहती थी। जैसे मैं आपको बोलूं, कॉस्मेटिक एक्सक्लूडेड है, टेलीमेडिसिन जो अभी नया लॉ है वो एक्सक्लूडेड है, ऑनलाइन कंसल्टेशन एक्सक्लूडेड है, बहुत सारी चीजें एक्सक्लूडेड है। लेकिन नए कस्टमाइज में सारी चीजें इंक्लूड की गई है। यहाँ तक कि आपकी लीगल फीस अक्रॉस द कंट्री, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, लीगल फीस अक्रॉस द कंट्री भी नए कस्टमाइज पॉलिसी में कवर की गई है। आज की तारीख में आपको महाराष्ट्र में एडवोकेट अपॉइंट करना होगा तो आपको मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए जाएगा। आपको तमिलनाडु में अपॉइंट करना होगा तो 25-30 हजार जाएगा। लेकिन अगर आपने इंडेमनिटी पॉलिसी सिर्फ 5,000 रुपए भर के निकाल ली साल भर की, तो इंडिया में कहीं भी आपके अगेंस्ट में केस हो जाए, आपको लीगल फीस कवर्ड है। मतलब आपके यूपी में भी एडवोकेट को अगर 25,000 देना है तो आपको किसी से देना नहीं, क्योंकि आपकी पॉलिसी आपके पास है। आप अपने सगे भाई को खड़ा करो एडवोकेट बना के, उसका बिल भी आप इंश्योरेंस कंपनी से लो, इंश्योरेंस कंपनी को देना ही है क्योंकि उन्होंने आपको कवर किया है। तो इंडेमनिटी पॉलिसी कस्टमाइज लेंगे तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक बड़ा डिफेंस हो जाएगा। तीसरा डिफेंस है, सॉरी तीसरा लायबिलिटी है, जो आपकी लायबिलिटी आती है मेडिकल काउंसिल की। जैसे डेंटल मेडिकल काउंसिल हो गया, डीसीआई हो गया, और आपके लोकल स्टेट की काउंसिल आती है। इनको 3 पनिशमेंट एक्ट के अंदर प्रावधान किया है। एक, वो आपको वार्निंग देके छोड़ सकते हैं, वो पनिशमेंट है कि चलो मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट को देखा, दोनों पार्टी को सुना, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि आपका पहला ऑफेंस है, हमको समझ में आता है कि आपने काफी केयर किया है, तो हम आपको वार्न करते हैं अगली बार ऐसा मत कीजिएगा। जैसे मेरे पास एक केस आया था, मैं आपको फिर से बता दूं, ये महाराष्ट्र का ही केस था, सिटी बॉम्बे का ही था। इसके बाद एक पेशेंट गई थी टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, उन्होंने एंटीबायोटिक पेन किलर लिखा, 3 दिन बाद फिर पेशेंट इसके पास गई, उस टाइम बहुत सीवियर पेन लेके गई, 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स भी फायदा नहीं किया। सीवियरिटी में उसके बाद एक ही ऑप्शन था, सर दांत निकाल दो, सर दांत निकाल दो। फिर अब चूंकि इस तरह से प्रेशर कर रही थी, 3 दिन से पेशेंट आ रहा था, तो डॉक्टर ने सोचा कि चलो मैं ट्रीटमेंट का यही इलाज होगा, तो उसने बीपी नहीं चेक किया, उसने उसका डायबिटीज नहीं चेक किया। पेशेंट ने जो हिस्ट्री दिया, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, उन्होंने टूथ एक्सट्रैक्ट किया। टूथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद पेशेंट घर पे गई, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग लेके वापस आई, डॉक्टर ने पैकिंग किया, फिर से घर पे गई, फिर से रात को करीब 10 बजे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग लेके आई।
डॉक्टर ने ऑर्थोडेंटिस्ट को कॉल किया, ऑर्थोडेंटिस्ट भाग के आई, उन्होंने एक ही चीज पूछा कि भाई ब्लड प्रेशर चेक किया था क्या? तो उसने बोला नहीं किया था। पेशेंट ने बोला मेरे को कोई हाइपरटेंशन नहीं। उसने बोला बीपी इंस्ट्रूमेंट दो। इनके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट भी क्लिनिक पे नहीं था। ये भाग के दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने वहां से बीपी इंस्ट्रूमेंट लाया और जब ऑर्थोडोंटिस्ट ने चेक किया तो बीपी था 240, 140, वेरी हाई बीपी। दैट वाज द रीजन फॉर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। अब सूचर मटेरियल नहीं क्लिनिक के अंदर, अल्टीमेटली पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके रात को 3 बजे तक बीपी कंट्रोल करके फिर सूचरिंग किया गया और वो जाके कन्वर्ट हो गया केसेस में, क्योंकि हमने हर चीज को प्रॉपरली हैंडल कर लिया। डीसीआई में भी हमने उसको हैंडल कर लिया। सब प्रॉपर करने के बाद भी उसको वार्निंग देके छोड़ा गया। तो वार्निंग इज द फर्स्ट पनिशमेंट। सेकंड पनिशमेंट, सस्पेंशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन 2 दिन के लिए सस्पेंड करे, 3 दिन के लिए सस्पेंड करे, 5 दिन के लिए सस्पेंड करे, 15 दिन के लिए सस्पेंड करे, ये आपके कमेटी के ऊपर डिपेंड रहता है। जो इंक्वायरी कमेटी रहती वो आपके द्वारा इलेक्ट किए लोग ही हैं, वो भी डॉक्टर ही हैं। आज उनको आपने पावर में दिया है तो वो आपके केस को देखते हैं एंड देन दे टेक अ कॉल कि भाई पनिशमेंट क्या देना है। थर्ड पनिशमेंट इज रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार। वो बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर है क्योंकि उसको हम लोग प्रोफेशनल डेथ पेनल्टी बोलते हैं। इसीलिए वो नॉर्मली प्रोफेशनल डेथ पेनल्टी नहीं देना है, रेयरेस्ट टू रेयर केस में देना है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। खाली मॉरल ट्रैपिट्यूड की केसेस में होता है जहां ये चांसेस होते हैं। तो डेंटल काउंसिल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इन शॉर्ट आपको 10 मिनट्स के अंदर डिफेंसेस की बात करता हूँ। मेरे अनुभव के हिसाब से बहुत सारे डिफेंसेस हैं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट डिफेंसेस की मैं हमेशा ही तरफदारी किया हूं क्योंकि वो एक्चुअली एक्सेप्टेबल है। एक सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में है मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आपका मेडिकल रिकॉर्ड अच्छा है तो क्रिमिनल कोर्ट में भी कमिटी के पास आपका पेपर ही जाता है, कंज्यूमर कोर्ट में भी आपका पेपर ही जाता है और मेडिकल काउंसिल में भी आपका पेपर ही जाता है। मैंने कई बार देखा है कि हमारे डॉक्टरों के पास कंसेंट, खास करके डेंटिस्ट्री में कंसेंट अवेलेबल ही नहीं होता। मैं आपको कंसेंट के बारे में पूरा सेशन नहीं लूंगा। फ्यूचर में डेफिनेटली मैं यूपी स्टेट के लिए 1 घंटे का सेशन ले लूंगा कंसेंट के ऊपर एज पर द सुप्रीम कोर्ट लॉ। लेकिन आज खाली मैं आपको हिंट दे दूं कि ओरल कंसेंट जो होता है, जिसको हम लोग इम्प्लाइड कंसेंट बोलते हैं, वो बहुत कम केसेस में डेंटिस्ट्री के लिए काम आता है क्योंकि वो ट्रीटमेंट काम करता है। पेशेंट चल के आपके क्लिनिक पे आए, आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवा दिया और पेशेंट ट्रीटमेंट लेके गया तो वो इम्प्लाइड कंसेंट है क्योंकि मैं आपके यहाँ आया इसलिए मैंने आपको कंसेंट दिया। लेकिन ऐसे केसेस में आपको भी अनुभव होगा कि वो आपके पास आने के बजाय मेडिकल स्टोर पे जाता है, आपके पास प्रोसीजर के लिए आता है। हर डेंटिस्ट्री के पास 90% केसेस प्रोसीजर के रहते हैं, छोटा प्रोसीजर या बड़ा प्रोसीजर। 90% केसेस जब प्रोसीजर के हैं तो लॉ क्या बोलता है, इफ यू आर टचिंग द बॉडी ऑफ सम अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट और एनी ट्रीटमेंट, यू नीड टू टेक एक्सप्रेस कंसेंट। एक्सप्रेस कंसेंट को बोलते हैं हम लोग रिटर्न कंसेंट। रिटर्न कंसेंट 90% प्लस केसेस में मैंडेटरी होता है। आपके डेंटल केसेस में आप सादा रूट कैनाल ट्रीटमेंट करो, आप सादा क्लीनिंग करो, तो भी आपके लिए रिटर्न कंसेंट बहुत जरूरी है। बहुत बार आपने देखा होगा आपके खुद के क्लिनिक में मल्टीपल सिटिंग्स में आप ट्रीटमेंट करते हो। भाई रूट कैनाल के लिए 3 सिटिंग होगी या और कोई ट्रीटमेंट के लिए 4 सिटिंग्स होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हर सिटिंग का कंसेंट नहीं लेते हैं और पहला कंसेंट भी जनरलाइज कंसेंट नहीं रहता। आपको उन चीजों का भी ख्याल रखना है कि किस तरह कंसेंट का प्रिंसिपल हमारे कंट्री में 2009 में मनचंदा के केस में सेटल्ड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और बहुत ही क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि आपको ये चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। किसी भी कंसेंट में अगर ये 4 चीजें नहीं है तो कंसेंट इज गोइंग टू बी इनवैलिड कंसेंट। कोर्ट ऑफ लॉ में हमेशा याद रखिए, अब की तारीख में यंग एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट्स आ रहे हैं वो एडवोकेट सीरियस हैं उनके प्रोफेशन में और वो काफी स्टडी करके आते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपके ही एडवोकेट को इस तरह से वो आर्ग्यू कर डालते हैं कि आपका अच्छा केस भी कहीं ना कहीं आप वीक में पड़ जाते हो, क्योंकि चीजों को इंटरप्रेट करना हर एडवोकेट का काम है। आपके मेडिकल रिकॉर्ड को उस तरह से इंटरप्रेट करना एडवोकेट का काम है। तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके ओपीडी सेटअप में मेरे हिसाब से, अगर जो कि आपका आईपीडी सेटअप नहीं है, आपका ओपीडी सेटअप है, तो मेरे हिसाब से आपके ओपीडी सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वो जब पेशेंट आपके पास आता है वो फॉर्म, दूसरा एक कंसेंट फॉर्म,
तीसरा कंटिन्यूएशन शीट जो आप उसको हर बार ट्रीटमेंट करते हो। चौथा, कभी पेशेंट ने समरी मांगा ट्रीटमेंट का तो उसके हाथ में जो देते हो। ये चारों चीजें आपके लिए बहुत ही प्राइम मेडिकल रिकॉर्ड में रोल प्ले करती हैं। बिलीव करो फ्रेंड, मैंने मेजॉरिटी ऑफ केसेस अपने लाइफ टाइम में मेडिकल रिकॉर्ड के ऊपर ही जीता है, और जो भी एडवोकेट विन करता है वो आपके मेडिकल रिकॉर्ड पे ही करता है। मेडिकल रिकॉर्ड, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं मेडिकल रिकॉर्ड की जब बात ही कर रहा हूँ, एक केस था, कॉस्मेटिक का ही केस था। सेंटर रन कर रहा था कोई डेंटिस्ट थी, लेकिन उसके पास नेचुरली क्वालिफाइड डॉक्टर भी थे, और एक हेयर रिमूवल की केस आई थी उसके पास फेस के लिए, और उसको उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट एडवाइस किया था। लेजर ट्रीटमेंट में 10 सिटिंग में से 8 सिटिंग हो गई थी, रिजल्ट्स नहीं मिले थे। 8 सिटिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई थी लेजर की, जिसकी वजह से स्किन बर्न हो गया, एंड ये पेशेंट कोर्ट ऑफ लॉ में गई। डॉक्टर का डिफेंस सिर्फ इतनी था कि ये जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है, ये मैंने उनको प्रायर टू ट्रीटमेंट समझाया था, और ये डॉक्यूमेंट है, ये पेपर्स हैं। ये पेपर ने क्लियर कट दिया है कि इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है, और पेशेंट ने ये समझने के बाद साइन किया है, और कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, और कोर्ट ने वर्डिक्ट डॉक्टर के और सेंटर के फेवर में दिया। तो सोचिए आपका मेडिकल रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है। तो मेडिकल रिकॉर्ड आप जितना अच्छा मेंटेन करोगे, उतना आपके विनिंग चांसेस तीनों लायबिलिटी में बहुत ऊंचे हैं। मेडिकल रिकॉर्ड पे भी मैं सेशन लिया हूं, आप सुन सकते हो। फ्यूचर में कभी फिर मौका मिला तो मैं आपके लिए डेफिनेटली मेडिकल रिकॉर्ड पे एक पूरा सेशन दूंगा कि क्या क्या चीजें उस पे आपको लिखनी चाहिए। प्रैक्टिकली कोर्ट में जो मैं देखता हूँ वो चीजें मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। तो मेडिकल रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी। फिर से मैं बोलूंगा, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी आपके लिए बहुत बड़ा डिफेंस है। हमारे डॉक्टर इसकी सीरियसनेस समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास सादा इंजेक्शन एब्सेस लीडिंग टू डेथ का केस 28 करोड़ का आया हुआ है। मेरे पास 30 करोड़ का सीजरियन का केस डेथ में आया हुआ है। डेंटिस्ट्री में अगर डेथ हो गई और बंदा कमाने वाला है तो आप समझ लो करोड़ों में केस जाएगा। और रेयर टू रेयर होता है, लेकिन होता है। मैं नहीं बोलूंगा सेप्टिसीमिया में डेथ नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगा पोस्ट ब्लीडिंग में डेथ नहीं होगा, क्योंकि प्रोसीजर आप करते हो आपको पता नहीं। मेरे पास तो मैक्सिलोफेशियल के केसेस हैं कि उसने क्लेफ्ट, उसको प्लेट लगाना था बोन का, और उसने बोन निकालने के लिए इतना प्रेशर से किया कि क्रेनियल फ्रैक्चर हो गया, पेशेंट का डेथ हो गया हेमरेज से। ऐसे भी केसेस हैं। तो क्या होगा ये उनको पता नहीं, लेकिन वहां करोड़ में भी केसेस जा सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है, तो अगर मान लो वर्स्ट सिनारियो में कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में भी जजमेंट दिया, तो भी आपको खीसे से पैसा देना नहीं है। आपकी नई कस्टमाइज्ड पॉलिसी इस तरह से डिजाइन की गई है कि अगर मान लो ऑर्डर देता है तो रीएम्बर्समेंट नहीं, नॉर्मल पॉलिसी रीएम्बर्समेंट की है, मतलब जो आपके पास होगी भी वो भी रीएम्बर्समेंट की होगी, क्योंकि पहले आप भरो फिर वो देगी। लेकिन आपके पास पैसा नहीं तो कहां से इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी विल डायरेक्टली पे टू द क्लेमेंट आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर। अपील को जाना है तो भी आपको वो पॉलिसी के अंदर पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी बनेगी, एंड यू कैन हैव अ अपील इन अपर कोर्ट। मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल पॉलिसी डिजाइन्ड फॉर ऑल माय डॉक्टर्स। और कितना खर्चा है, मैं अगर आप मेरे को पूछो तो 300 रुपए महीना भी नहीं होगा, 10 रुपए रोज का भी नहीं होगा। 50 लाख तक की पॉलिसी का अगर आप जाके देखोगे, कॉस्ट वाइज मोस्ट इकोनॉमिक। और क्यों है, क्योंकि 16 साल से था, कई इंश्योरेंस कंपनी के साथ हर चीजों को कवर करने की कोशिश करते करते एक बढ़िया पॉलिसी बन गई है। आप लोग अपनी पॉलिसी उठा के देखोगे, खुद ही जाके देखना आज घर पे, अगर आपके पास होगी तो, कि आपने कितना पेमेंट किया है। नॉर्मल जो पॉलिसी है, हमारे एजेंट लोग हमारे डेंटिस्ट्री को फिजिशियन की पॉलिसी बेचते हैं। ये मैंने कई केसेस में देखा, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। आप लोग फिजिशियन नहीं हो, अपने दिमाग से निकाल दो कि आप खाली दवा देते हो। आप लोग सर्जन हो, क्योंकि आपके डिग्री में लिखा हुआ है बीडीएस। बीडीएस का मतलब क्या, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। आप जितना कुछ करते हो सारे के सारे प्रोसीजर्स करते हो जो सर्जन करता है। और आपने फिजिशियन की पॉलिसी सस्ते में है इसलिए ली, तो आपके इंश्योरेंस कंपनी 100% आपका क्लेम रिजेक्ट करेगी। हमारे डॉक्टरों को समझता नहीं, वो एजेंट आके बोलता है नहीं सर इतने सस्ते में है, आप बोलते यार ये निकाल दे। प्लीज ऐसा मिस्टेक मत कीजिए। सर्जन की पॉलिसी नॉर्मली
2% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू रहती है नॉर्मली। कहने का मतलब कि अगर आप 1 करोड़ की ले रहे हो तो 20,000 रुपए है, आप 50 लाख के ले रहे हो तो 10,000 रुपए है, नॉर्मल रेट है। लेकिन आईडीए के साथ जो कस्टमाइज पॉलिसी आपको ऑफर की गई है, आप जाके देखिएगा, एवरी पॉसिबल थिंग्स 30 to 40% डिस्काउंट ऑफ ओरिजिनल रेट, मतलब आपको 10,000 भी नहीं देना है। वही पॉलिसी शायद आपको 6-7 हजार में मिल जाएगी 50 लाख की, विद एवरीथिंग कवर्ड। अब मेरे को बताइए 7,000 में अगर आपको पॉलिसी मिल रही है, जहाँ पूरे इंडिया में आपको एडवोकेट उसी कॉस्ट में मिल रहे हैं, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन मेरे को नहीं लगता है हमारे डॉक्टरों के लिए दुनिया में कुछ है। और मैं तो यही बोलता हूँ, मुसीबत बता के नहीं आती फ्रेंड, क्योंकि नया जो क्रॉप है, यंग क्रॉप है, नया क्रॉप है, नोटिस तो भेजेगा ही, नया क्रॉप है, केस तो करेगा ही। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी सेकंड बेहतरीन डिफेंस है। आप आईडीए के साइट पे जाके देख सकते हो, या फिर आपको मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी और उदय जी आपको बता देंगे, आपके लिए अवेलेबल है आईडीए की पॉलिसीज। स्नेहा भी आपको बता देगी, जो आप जाके वहां से ले सकते हैं। तीसरा डिफेंस है मेडिको लीगल सर्विस। मेरा अनुभव है कि खाली इंडेमनिटी पॉलिसी डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंडेमनिटी पॉलिसी काम कब आती है, जब कोर्ट में केस दायर हो जाता है, और हमारा कोई डॉक्टर नहीं चाहता कोर्ट में केस जाए, क्योंकि उसका रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके मेडिको लीगल सर्विस का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको प्री लिटिगेशन में बहुत बड़ा काम आता है। प्री लिटिगेशन, पेशेंट ने आके आपसे आर्ग्यूमेंट किया, आपसे पेपर मांगा, तो आप समझ लीजिए पोटेंट लिटिगेंट है। ऐसे टाइम पे मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स को आप कांटेक्ट कीजिए, आपके आईपीडी ओपीडी पेपर का ऑडिट कीजिए, क्योंकि पेपर तो पेशेंट के पास गया नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है पेपर को प्रॉपर करने की। ऑडिट कीजिए, नोटिस आ गई तो उसको प्रॉपर आंसर कीजिए। इन सब केसेस में कोर्ट में केस जाते नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ 16,000 इश्यूज जो मेरे अक्रॉस द कंट्री मेरे तक आए थे, 0.5% भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गए, क्योंकि प्री लिटिगेशन ऐसे बहुतों के होंगे, जब मेरे हैं तो कईयों के होंगे, तो प्री लिटिगेशन में सपोर्ट में बहुत कुछ हो जाता है। प्रॉपर टाइम पे नोटिस को आंसर करना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग लिटिगेशन, ड्यूरिंग कहने मतलब कि आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया और पेशेंट को एनाफिलेक्टाइड रिएक्शन आ गया, पेशेंट का टेबल डेथ हो गया, उस टाइम पे भी अगर आपने मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स को कॉल किया, आपका एक्सपर्ट अपने अनुभव के हिसाब से आपको तुरंत गाइड करता है, क्योंकि तुरंत पुलिस पेपर ले सकती है, पेपर वर्क कैसे करना, डेथ डिक्लेयर कैसे करना, मूवमेंट क्या करना, मॉब को कैसे हैंडल करना। ड्यूरिंग लिटिगेशन भी काफी चीजें हैंडल की जा सकती हैं जो इंडेमनिटी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। पोस्ट लिटिगेशन, कोर्ट ऑफ केस में लॉ कोर्ट में कर केस चले जाता है, आपने भले अपने भाई को अपॉइंट किया हो, किसी दोस्त को अपॉइंट किया हो, लोकल एडवोकेट को अपॉइंट किया हो, उसको भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझना डिफिकल्ट है। एस्पेक्सिया और हाइपेक्सिया क्या उसको पता नहीं, न्यूरोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या पता नहीं, और वो आप पे डिपेंड रहता है कि भाई ड्राफ्टिंग में आप मदद करो, और आप बिजी रहते हो, आप मदद नहीं कर पाते हो, और कोर्ट ऑफ लॉ में केस हार जाते हो। ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी मेडिको लीगल एक्सपर्ट के थ्रू जावे तो काफी फर्क पड़ जाता है। तो ड्यूरिंग, पोस्ट एंड बिफोर ऑलवेज मेडिको लीगल सपोर्ट काम आता है। बाकी चीजों में, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने लाइफ में देखा कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स उनके हार्डेंड पैसे को रिकवर नहीं कर पाते। किसी पेशेंट ने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, किसी ने आधा पेमेंट दिया, भाग गया, कोई आया ही नहीं, जबकि आपको पता रहता है कि आपका पैसा है। फ्रेंड, मेडिको लीगल एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके आप नोटिस भेजिए। आपको नोटिस आता है तो आप भी डरते हो, तो वैसे जिसको पैसा देना वो भी डरेगा। तो डर के आके आपको 50% पैसे दे, तो कम से कम कुछ तो 5 लाख रुपए साल के अगर आपके डूब गए और आपके 2 लाख रुपए भी रिकवर हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर डील और कुछ होगा। इसके अलावा डिफेमेशन बहुत लोग करते हैं हमारे डॉक्टरों का सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे डिफेमेशन करने वालों को ब्लॉक करना जरूरी है, नहीं तो आपकी पूरी लाइफ का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इनको भी नोटिस भेजो ना, मेडिको लीगल एक्सपर्ट आपके लिए बैठा हुआ है, जो एक्सपर्ट है वो तुरंत। मैंने ऐसे कई लोगों को डिफेमेशन नोटिस भेजा है, क्रिमिनल और सिविल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि आपको जो सप्लाई करते हैं, इम्प्लांट सप्लायर हो गए, इंस्ट्रूमेंट सप्लायर हो गए, बहुत सारे मटेरियल सप्लायर हो गए, ये लोग भी आपको क्वालिटी मटेरियल देते हैं, जिसके लिए पेशेंट आप पर केस करता है और वो तो हाथ उठा देते हैं। लेकिन अगर आप मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स के साथ हो तो इनको भी आप नोटिस भेज सकते हो और इनसे भी अपनी चीजों को रिकवर कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स आपको देता है, और इन चीजों की वजह से आपका पीस बहुत ज्यादा होता है।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फाइनेंस का नॉलेज नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप आउटसोर्स कर दो, ड्राइविंग का नॉलेज नहीं तो ड्राइवर को आउटसोर्स कर दो, वैसे ही इस फील्ड में अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए तो आउटसोर्स है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेडिको लीगल सर्विस। आईडिया ने कॉम्बिनेशन में आपको दिया है इंडemnity पॉलिसी के साथ में, तो वो तो आपके लिए बेटर डील है, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि इंडemnity पॉलिसी में वो इनबिल्ट आ रहा है आपके साथ में। चौथा डिफेंस लीगल एजुकेशन है। जैसे आज मैं थैंक्स दूंगा यूपी स्टेट के सारे पदाधिकारियों को जिन्होंने अपने लोगों के लिए एक एजुकेशन सीरीज लाने का कोशिश किया। इस तरह के सीरीज हमारे डॉक्टरों के नॉलेज को बढ़ाते हैं, और जब डॉक्टर का नॉलेज बढ़ता है तो डॉक्टर खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, खुद को डिफेंड कर सकता है। और आई एम श्योर कि आज अगर आपने 1 घंटा 1.5 घंटा निकाला है तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ में आई ही होंगी। तो लीगल एजुकेशन एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और हम अपने डॉक्टरों को एजुकेट करने के लिए रेगुलरली मेडिको लीगल टिप्स भेजते रहते हैं। आपको भी मेडिको लीगल टिप्स आएंगे, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड कब तक रखना, मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए सिस्टम्स क्या हैं, बहुत सारी अनआंसर्ड क्वेश्चन रहते हैं जो मेडिको लीगल टिप्स में आपको मिलते रहते हैं। Where you are going to get educated with your knowledge and medical law. And पांचवा डिफेंस फ्रेंड एवरग्रीन इज अ कम्युनिकेशन। आप अगर प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो पेशेंट से, रिलेटिव से, तो लिटिगेशन बहुत कम होता है। आपके स्टाफ को आपने ट्रेन किया किस तरह से कम्युनिकेट करना, तो आपके लिटिगेशन बहुत कम होते हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस में मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो मैंने देखे हैं, वो केसेस बहुत सारे एटीट्यूडल और बिहेवियर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ की वजह से होते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर ने कुछ किया उसके वजह से होते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए। ये 5 चीजों पे अगर आपने फोकस किया, मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी फ्रॉम डॉक्टर्स मेडिको लीगल सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 16 साल से मुंबई और महाराष्ट्र में कार्य कर रही है। यूपी में भी इसका अस्तित्व है। मैंने कई केसेस वाराणसी के, लखनऊ के और एरिया के किए हैं। मैं पास्ट में लखनऊ में भी सेमिनार्स आके लिया हूँ, उर्दू क्लाक और बाकी जगहों पे, नर्सिंग होम एसोसिएशन के लिए और कंसल्टेंट ग्रुप ऑफ गायनिक एंड प्लास्टिक सर्जन्स के लिए। ऐसे सेमिनार्स और वेबिनार्स कॉमनली चलते रहते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको करोगे तो यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद दैट। सो प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी, मेडिको लीगल सर्विसेज, डॉक्टर तो आपको प्रोवाइड करती है, आप पर्सनली भी ले सकते हो। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, आपका लीगल एजुकेशन अच्छा हो जाए, बिलीव करो फ्रेंड, कोई भी लायबिलिटी आपको तकलीफ नहीं देगी। जाते जाते मैं पहले क्वेश्चन आंसर के पहले एक और चीजें आपको प्रोवोक कर रहा हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन और पूछो और नॉलेज लेने की कोशिश करो। लेटेस्ट जजमेंट आया था 6 जुलाई 2020 में इन रिलेशन टू कंसेंट, वो आपके लिए वार्निंग है। मैं चाहता हूं कि आप उसको समझो। वो जजमेंट ने ये कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता, ये आज की तारीख में वैलिड लॉ है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये कहता है कि प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म, जैसे हम लोग रूट कैनाल के लिए प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म यूज करते हैं, इम्प्लांट के लिए प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म यूज करते हैं। प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म विद सम ब्लैंक स्पेस and for space for signing the witness and the patient is arbitrary in nature. It is a high headedness of the center and hospital. It is unfair trade practice. और ये जजमेंट में मेडिकल नेग्लिजेंस पे तो कोर्ट ने डॉक्टर के फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि चूंकि हॉस्पिटल ने प्री प्रिंटेड फॉर्म यूज किया है, इसलिए 10 लाख रुपीस पेनाल्टी टू द हॉस्पिटल टू बी पेड इन लीगल एड। नाउ ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट हो गया है। तो अगर आप लोग प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म यूज करते होंगे तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ कि किस तरह से आपको कंसेंट यूज करना है, सो दैट यू कैन बी प्रोटेक्टेड। विद दिस आई रियली थैंक all the Padadhikaris of UP state who has taken a pain to attend the session and invite the people. It's very special thank to Edelweiss, Dr. Jadhav ji, Uday ji, Lakshmikant, and naturally IDA, Manish ji and Snehal, who are there to take care of your people, for inviting me and sharing my experience with my people. I love my people, so I always there to save my people. I really thank these people, and then I open forum for the question answer. You may have got a lots of question in your mind. I will definitely answer whatever comes to me. मेरे नहीं आता होगा तो मैं ना कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ आपके जैसा। और मेरे फादर बोलते थे कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग, इसलिए शायद मैं सेशंस लेने लग गया कि मैं और सीखूं। तो
सचिन जी ओपन है फोरम, चतुर्वेदी जी ओपन है फोरम, आप Thank लोग you, sir. कहिए, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस लक्ष्मीकांत। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी प्रेसिडेंट साहब को मैं आग्रह करूंगा कि ऑडियंस के पास अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आप लोगों को इनवाइट कीजिए। अंबिका लुथरा ने हाथ रेस किया था, अगर आप बोलो तो वी कैन अलाउ हर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अरुण मिश्रा, यू आर वन ऑफ द एक्सीलेंट ओरेटर। यस प्रेसिडेंट साहब। हाँ, बताइए you have प्रेसिडेंट साहब। nicely covered everything, and you have a knowledge and orator skill both, then it is needed for the success of any person, and you have both. So sir, Thank you you. have covered very nicely everything, and a lot of the questions are mine in my brain. So just Dr. Murari, you want to Yes, ask sir. something? Yeah. Am I audible, sir? Yeah, आवाज आ you रही can है? go ahead. हाँ, आ रही है, सर बोलिए। Yeah, yes. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो आंखें खोल दी आज हमारी। बहुत सारी चीजें पहले बड़ा डरे रहते थे हम, और आज आपकी बात से तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, Thank और you, sir. Thank भगवान you. आपको हमेशा सकुशल रखे, स्वास्थ्य आपका बना रहे, कि आने वाले दिनों में आप हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने रहें। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म से बचिए, कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जस्ट मिनट बैक आपने जी, बोला कि प्री जी, मैं आपको प्रिंटेड, प्रोवोक मैं कर रहा उसको था उस कि आप पॉइंट क्वेश्चन को पूछ समझ नहीं पाया, उस पॉइंट को मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि कंसेंट फॉर्म अभी तक मैं बताऊं आपको एक बहुत ही ऐसा पॉइंट कि जनरली अभी तक डेंटिस्ट्री में अब इम्प्लांटोलॉजिस्ट कितना कंसेंट कैसा ले रहे हैं, जनरली अभी तक कंसेंट फॉर्म ऑर्थोडोंसिया में ज्यादा कर रहे थे लोग, क्योंकि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले रहे थे। टूथ एक्सट्रैक्शन या सिंपल ऐसे में कंसेंट नहीं ले रहे थे। तो हमें एक नया सेशन आपके लिए रखें हम लोग, की जिसमें कंसेंट फॉर्म कैसा होना चाहिए और क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, उसमें क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। जरूर, क्योंकि मैं 1 घंटे का सेशन होता है वो मैं शॉर्ट में आपको नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल क्योंकि कई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो कंसेंट के बारे में बात करते हैं। हाँ, नहीं वो उसमें ये सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं ये चाहूंगा कि अगर वो ये कंसेंट फॉर्म्स डिफरेंट उसके, एक्सट्रैक्शन में कैसा कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, ऑर्थोडोंसिया में कैसा होना चाहिए, इम्प्लांट के लिए कैसा कंसेंट होना चाहिए, अगर वो हमें जैसे कि कैसे भी मिल जाए कि भी हमको ये करना है, हमको ये मेरे ख्याल से आईडीए की साइट पे है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर नहीं है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको मॉडिफाई करके आज की करंट सिनेरियो सिचुएशन के हिसाब से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। मैं डेफिनेटली आपके लिए, आप लोगों के लिए कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। यस डॉक्टर सचिन, कुछ पूछना? डॉक्टर अंबिका लूथरा कुछ क्वेरी है। हाँ, उनको कोई हाथ रेस किया था उन्होंने शायद। आप अनम्यूट कर लीजिए। Good evening everyone, sir. I am really thankful to you. बहुत सारे confusions आज clear हुए हैं. Thank you to all the UP State Council people and to you also, sir. Really informative session. मेरे को सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, since I am a faculty in a dental college. So I want to know, should I go for a professional indemnity on a personal level, or we are still covered with college? No, you should. You must. I'll tell you, I've got a cases of government colleges also, government medical college also, where government gives a security to their doctor. But still, when case comes, it is going to be against one doctor. I'll tell you what happened. In government setup, government advocates go and defend you. And you know how they've been appointed and what they're going to argue. So you're not going to give your neck to the new and trainer people. It is advisable for every single doctor practicing in medical college or a government medical setup or in a private to have an individual cover, because that cover goes across the country. Second reason I say, many of the time, since you are at home, people know in society that you are a doctor, and in society someone needs your support and suddenly calls you. I have got multiple cases like this only, where neighbor was treated by the doctor and neighbor has filed a case. So here, if you do and they file a case,
you will not be protected by medical college because you have done in individual capacity. So it is advisable to every doctor to have a PI policy, and it costs very peanut amount. I'll tell you, it is a peanut amount which you need to invest on yourself. Mandatory invest on yourself. Right, sir. One more thing. What are your views on the consultations that we do on WhatsApp? I said telemedicine. Good, Ambika. Telemedicine law. I have not touched that topic, but let me tell you, telemedicine law has been given a green signal by the cabinet in various scenario situation of COVID from last 25th March, where 13th May the first notification came, and every council has proposed the same. It could be a homeopathic council of CCH, it is CCIM, Ayurvedic Medical Council, it is DCI, and it is MCI. And it has become law today, and we are coming out with the Digital Health Act and various other acts in the country. So naturally, future of the country is a telemedicine. Because you see that internet has reached to every corner, and it is a blessing to the doctor. I'll tell you, blessing to the doctor, because sitting at Lucknow, you can cover complete UP. Sitting at Lucknow, you can treat all India patient. So there's no scarcity of the patient. Secondly, medical tourism. Medical tourism is a byproduct of your telemedicine, because if we find that some patient want to have some surgical aspect of micro-interior of your Lucknow, you can call them to your center and they're willingly going to come, because it is your speech or your approach is going to give a confidence. So medical tourism become absolutely no. I'll advise you, people have been, I have seen in a country, once government has given a go ahead, I have seen that majority of software people have launched their software and exploiting my doctors. They are exploiting. If you read the agreement of theirs, it is so Dracula's agreement, but my doctor signs to get 30 rupees and 50 rupees. Please don't fall in trap. I'll tell you, complete wellness. You can go on a Play Store where I am there. It has given an open platform to the doctor. They can register themselves by putting all details about yourself. Complete wellness is a platform where you can charge your own fees. You can take your own time of appointment. You have to give this time of available appointment. Either you can market or it can be done by the marketing by the application. And then there is definitely going to be marketing cost of 50% and 50% is yours. But another platform available for you, which is again, you can use for your patient. It is a direct doc platform. You can go to Play Store that covers with your medical legal support system. You can download from the Play Store. You can register yourself. In that, total marketing power is given to you. That software only charges 10% of the fees you charge to the patient for maintaining a medical record, for covering our video record, for the server maintenance, for the software maintenance. So 90% is yours. That 90% you use for a marketing purpose. Like you can, suppose you have appointed some people at Gorakhpur and you are offered them a 30% and he is bringing a patient and consulting you. Then still you get a 70% of your cake. But don't get exploited with the people when there is a free support system available to you. Direct Doc is one you can download from Play Store, or Complete Wellness is other. You can register in both. You got all the options. One side, the Complete Wellness does the marketing. Second side, you need to do a marketing. One side, you need to share the marketing cost. Second side, you did not need to share a marketing cost. So you can register yourself as a service provider and you can use that. Telemedicine is going to future. Please adopt this technology. My humble request to every person here, please adopt it from today, because down the line 2 years, you will be out of the race. अगर आपने इसको आज नहीं एक्सेप्ट किया तो 2 साल के बाद आप रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि कंट्री पूरा डिजिटल हेल्थ पे जा रही है। अभी से आदत डाल दोगे तो सीख जाओगे, टेक्नोलॉजी सीख जाओगे, वीडियो कंसल्ट कैसे करना सीख जाओगे, ऑडियो कंसल्ट कैसे करना चाहिए, उसके अंदर कंसल्ट बिजनेस सब है। टेलीमेडिसिन के ऊपर मेरे कई सेशंस हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। टेलीमेडिसिन के पूरे लॉ को मैंने बहुत ब्रीफली समझाया हुआ है। फ्यूचर में कभी मौका मिला तो आपको भी इनवाइट करूंगा, आप सुनिएगा। But that is definitely there to protect you. Please go with that. That is my humble request. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you so much. थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन ये था सर कि मेडिकल रिकॉर्ड कितने दिनों तक रखना चाहिए? 3 साल। लॉ क्या, DCI का लॉ बोलता है 3 साल तक आपको बाई लॉ रखना चाहिए। मेरा अनुभव बोलता है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में 2 साल कंडोलेंस डिले मिलता है,
तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मिनिमम 5 साल रखिए, और 5 साल के बाद जब आप डिस्पोज करते हैं तो मैं आपको एक बना के दूंगा फॉर्मेट, वो फॉर्मेट के हिसाब से आप 2 न्यूज़पेपर में 1000-2000 रुपए लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट दीजिए, उसकी कटिंग रखिए, उसके अंदर सब कुछ लिखा रहेगा कि जिसको चाहिए आके लेके जाए और अपने बताए। फिर वो पेपर आपको काम आता है कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर कल को मेडिकल रिकॉर्ड की बात आती है। एमएलसी केस में टिल द टाइम केस एंड्स, तो लाइफ लॉन्ग, अगर यहाँ मेडिको लीगल कंप्लेन हुआ है। ठीक है, डॉक्टर कठारिया सर कुछ यस सर, हमारे पास प्रेसिडेंट सर। आई एम ऑडिबल नाउ? थैंक या, यू या, वेरी मच या, सुनील साहब, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया। और कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम थी, आज पता चली। यूपी गवर्नमेंट के मैं बताना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने एवरी सैटरडे एक इस पे सेमिनार ही कर दिया। जब कोविड केसेस कम थे तो फिजिकल मीटिंग्स होती थी, उसमें फैकल्टी स्टूडेंट्स वगैरह आते थे और 5-5, 7-7 मिनट के करीब 5-7 लेक्चर हुआ करते थे। आज की तारीख में वो जूम पे चल रहा है, और क्योंकि लोगों की ड्यूटी कोविड वार्ड्स में लगी हुई है तो इसको हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। जूम पे मीटिंग करते हैं, एथिक्स के बारे में सब लोगों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें कुछ डेंटल सर्जन भी जुड़े हुए हैं। 2-3 एक्सपीरियंसेस मैं इस तरीके के केसेस को शेयर करना चाहूंगा। 19 अगस्त की बात है, एक पेशेंट मेरे पास में आती है, लेडी, इज अराउंड 45 इयर्स ऑफ एज, थोड़ा सा हैवी बिल्ड, शॉर्ट नेक। और मैंने पूछा कि बताओ क्या बात है, तो उन्होंने मेरे से बताया कि डॉक्टर साहब वो एक दांत निकलवाना है, मैं एक डेंटिस्ट को दिखाने गई थी, तो उन्होंने कहा तो दांत में दर्द है, निकालना पड़ेगा, मुझे पता चला कि आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, सर्जरी आप करते हैं, तो मैं आपसे निकलवाना चाहती हूँ। तो अब बोले आप निकाल दो अभी। ऐसे कैसे निकल जाएगा, लेट मी चेक कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उनको देखा, डेंटिस्ट ने एक्सरे भी कराया था, तो उनका जो नीचे वाला है लोअर थर्ड मोलर इन्फेक्टेड था एक्चुअली, कहीं किसी भी दांत में उसमें कैविटी वगैरह नहीं थी, और ऐसा वो दांत नहीं था जिससे ज्यादा एक्यूट पेन हो। दृष्टि लिया तो बोले साहब वो दर्द होता है, जबड़े में जाता है, कंधे में जाता है और हाथ में जाता है। और वो लेडी थी थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, पसीना आ रहा था, घबराहट हो रही थी। तो मैंने कहा मैडम आपको ये दांत में ऐसी परेशानी, इतना आपको दांत में कैविटी नहीं है, एक्सरे भी क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। और उनके हस्बैंड ने कोई सिटी के एक वीआईपी थे, उनको फोन मिला दिया और उनका भी फोन से बात हुआ। तो मैंने उनको यही समझाया कि इनको दांत में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट हमारी है, इनको आप कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी फिजिशियन से चेकअप करवा दीजिए। वो डेंटल व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है ना साहब, आप जिनको बोलना चाहें तो कहते हैं। मैंने बोला कि आप ये डॉक्टर है, यहाँ पे चले जाइए, बंद होने वाला होगा, आप चले जाओ। और जैसे वो पेशेंट वहां पहुंची, उन्होंने देखा 15 मिनट में उन्होंने मेरे को फोन किया, डॉक्टर साहब इनको एमआई हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है, ये दांत की वजह से नहीं, सिम्टम पूरे ये है, हॉस्पिटलाइज हुई। तो बात इसमें ये आती है कि जो पहला डेंटिस्ट था, ये बात डीडीएस वाली, उनको लगा कि नहीं ये दांत निकलेगा। 100% डीडीएस के लेवल पर दांत निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, निकलता तो करीब 1-1.5 घंटे की सर्जरी थी। मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी निकालता तो करीब आधा घंटा 45 मिनट था। थोरो इन्वेस्टिगेशन और प्रायर रिसर्च के मस्ट है। एक पेशेंट और शेयर करना चाहूंगा कि एक पेशेंट था, किसी ने से दांत निकलवाया, तुरंत में कुछ चीज घाव भरा नहीं, मेरे को हॉस्पिटल में दिखाने आया करीब 15 दिन के बाद में, साहब देखिए मैंने डॉक्टर साहब से दांत निकलवाया था और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई देखा और बताया कि इसमें आप नहीं ठीक हो रहा है, तो कोई भी दांत निकलता है घाव तो 5-7 दिन में भर जाता है, एक जांच करा लो। आप बोलो क्या जांच करा लो? डायबिटीज करा ली, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, मेरे को हार्ट की कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा बायोप्सी करा लो। बायोप्सी क्या होती है? छोटा सा टुकड़ा है, वो काट के दे दे, उसको आप जांच करा लो। वो तो पेशेंट मेरे से झगड़ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो देखो ये हमारा ओपिनियन है, मानना या ना मानना तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। और मैंने उसमें मुझे दिया एडवाइस, बायोप्सी हाउ ओवर पेशेंट रिग्रेटेड, चला गया। 3 हफ्ते के बाद में दोबारा आया, और वो जो दांत का दांत से निकला था वो घाव काफी बड़ा हो गया और काफी फ्लोटिंग आउट का सूजन उसमें बाहर गई। तो मैंने कहा अब तो जांच कराओ। बोले अब तो मैंने जांच करा ली है। तो क्या जांच निकली, उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दिखाई। तो मैंने कहा भाई तो कैंसर है, इसमें कैंसर की शिकायत है, जरूरत है। आप
हमें बड़े सर्जरी की जरूरत है, ये ट्रीटमेंट होता है, ये है, और वो कहा मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, आप वो रेफर कर दीजिए, तो मैंने ठीक मैं रेफर कर देता हूँ, तो मैंने लिख दिया कि रेफर टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ऑन रिक्वेस्ट। पेशेंट चला गया, ऑपरेट होके आया, और 3 महीने बाद मेरे को मिला, बस आप देखिए मेरा जबड़ा कट गया है, ये हो गया वो हो गया। मैं जिस डॉक्टर को दिखाया था और आपके अगेंस्ट केस करना चाहता हूँ, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक को जानने वाले को लेके आया, तो साहब आप बताइए मैं क्या करूँ। अच्छा आप एक काम करिए, जिसने पहले दांत निकाला था उसी डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ लिख के दे दिया। मैं क्या लिख के दे, आप निकाल दिया, मैं तो लिख नहीं सकता किसी अगेंस्ट में। हमारे जो पर्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आपके पर्चे आपने नहीं कराया तो हम क्या कर सकते, किसी किस्म की जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये लिखा है कि आपने मना किया हुआ है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोर्ट किया, उन्होंने मुकदमा किया, और अल्टीमेटली वो डिसमिस हो गया, उसमें हुआ नहीं। एक केस नंबर था, एक छोटा सा एक केस और है, एक पेशेंट को जबड़े में सेप्सिस हो गई, वो पेशेंट किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 4-5 दिन रहा, किसी जनरल सर्जन ने उसको ट्रेन कर दिया। एक दिन रात को 11 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब आपके घर के नीचे बाहर खड़े हैं, आप प्लीज अगर आप देख लें तो अच्छा है। मैंने कहा मैं तो भाई रात में मरीज नहीं देख रहा हूँ, आप इमरजेंसी चले जाइए या आप सुबह मेरे से 8 बजे संपर्क करिए। ओके सर इमरजेंसी है, मैं इमरजेंसी देखता रहूंगा, प्लीज। फिर भी रिक्वेस्ट की तो मैं नीचे गया, पेशेंट सांस नहीं आ रही थी काफी, वो नीचे वाले जबड़े के आगे वाले हिस्से में सूजन थी। मैंने कहा कि जहाँ से आपने डिस्चार्ज कराया है तुरंत उनको भर्ती करिए। जवाब था नहीं साहब वहाँ किसी डेंटिस्ट को देखा नहीं। तो मैंने कहा वो बात अलग है, लेकिन इसमें कोई इमरजेंसी की जरूरत है, आप तुरंत जाइए। मैंने पर्ची भेजी, तो आपकी चल रही है यही चलेगी, लेकिन हॉस्पिटल में वापस जाओ। वो पेशेंट गया नहीं वापस, और अगले दिन शाम को पता चला उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो हम लोगों को जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो भी हम पर्चा लिखते हैं, जो मरीज को देते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, मेरे एक ही लोग सजेशन है कि बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, वेदर इट्स नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर इट इज। आपने क्या देखा फाइंडिंग उसमें जरूर रिकॉर्ड करिए। आपने मरीज एक दांत में कैरिंग लेके आया है, हो सकता है उसको बगल वाले दांत में भी कैविटीज होती है, जैसे हम लोगों की एज में क्या होता है ओल्ड एज कैरिंग है, एक दांत में कैरिंग खाना फंसने की वजह से संभावना है कि बगल वाले दांत में भी हो सकता है एक्सरे में दिखाई दे तो ये उसमें दर्द ना होता हो। तो फाइंडिंग जरूर मेंशन कर दीजिए कि दूसरे और नियर बाई टीथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आपने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का काफी नाम लिया हुआ है, डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी साहब डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रहे। मैं भी करीब 12 साल से डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, और 4 साल से एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ। वहां पर हम लोगों ने जो मेन बॉडी हमारी डेंटल काउंसिल है, उसमें एक एक्ट के तहत, आप वकील साहब हैं, एक्ट के तहत काउंसिल बनी हुई है। इसमें जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो डेंटल एजुकेशन का पार्ट देखती है, डेंटल कॉलेजेस का है, डिग्रीज का है, क्वालिफिकेशन का है, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो हम यूनिवर्सिटीज के साथ में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सॉल्व करती है। लेकिन जहां तक पेशेंट का रिलेटेड काम होता है उसके लिए काउंसिल ने, स्टेट काउंसिल को पावर्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो, उनका अलग से मैनेजमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, उनका अलग से ऑफिसर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और वहां से वो सब चीजें होती हैं। जो भी कंप्लेंट आती है, ढेर सारी कंप्लेंट्स आती हैं, वो हम सब स्टेट काउंसिल्स को रेफर कर देते हैं, और वो लोग कई बार तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी उन लोगों ने लिया है। एक केस एक ऐसा आया था, मध्य प्रदेश का है, काफी फेमस है, कि कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अखबार मीडिया में भी काफी आया था, प्रिंट मीडिया में था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था। तो स्टेट काउंसिल जो उस स्टेट की थी, और उनका रजिस्ट्रेशन जो है उनको वो सस्पेंड करने की बजाय कैंसिल कर दिया था। तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी, और उनकी दलील ये थी पिटिशनर ने कि साहब ये तो हमारी लाइवलीहुड है, और चूंकि मेरे को बेल मिल गई है, और तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, हमारा रजिस्ट्रेशन तो आप रजिस्ट्रेट कर दिए। और कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेट कर दिया था। आज की तारीख में वो प्रैक्टिस करने लगे हैं, मैटर कोर्ट में चल रहा है, जो भी डिसीजन होगा बाद में फाइनल होगा। जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो मेन बॉडी दिल्ली की है, वो रजिस्ट्रेशन में किसी भी व्यक्ति को छेड़छाड़ नहीं करती है।
अनलेस एंड अनटिल स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट काउंसिल ओपिनियन मांगती है कि इस केस में क्या किया जाए। अब वकील साहब, आपने ढेर सारे केसेस देखे होंगे। कर्नाटक का एक केस आया था, बेंगलोर वाला, जिसमें एक छोटे बच्चे की रूट कैनाल ट्रीटमेंट जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा था, और वो शायद जो एनेस्थेटिस्ट थे वो अपने अटेंडेंट को ट्यूब पकड़ा के और वो नीचे चले गए, नोबल पढ़ रहे थे। डेंटिस्ट को पता नहीं चल पाया, छोटे बच्चे की साइनोसिस हुई और उसकी डेथ हो गई थी। उस केस में इंक्वायरी हुई थी, डेंटल काउंसिल में केस आया था, डेंटल काउंसिल ने स्टेट गवर्नमेंट को रेफर किया था, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें इंक्वायरी करा करके वो एनेस्थेटिस्ट और डेंटिस्ट दोनों के खिलाफ 1-1 साल के लिए उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो सस्पेंड किया हुआ था। तो मैं यही एक सलाह लोगों को देना चाहता हूँ कि जो भी करें, बिल्कुल मरीज की जांच 5 मिनट का समय दीजिए कि क्या इसकी प्रॉब्लम है। कई बार मरीज छुपाता है, कई बार सोचता है कि दांत निकलवाने के लिए, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सी दवा हार्ट के लिए खा रहा हूँ, डायबिटीज की दवा खा रहा हूँ। वो सोचता है ये तो साहब बहुत कॉमन है, छोटा सा दांत है, निकल जाएगा। लेकिन अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है तो 100% प्रॉब्लम होती है। हमारा भी यही करीब प्रैक्टिस में 40 साल का अनुभव है कि अगर पेशेंट की डायबिटीज बढ़ी हुई है तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, धोखे से दांत निकल गया हो या कोई भी सर्जरी छोटी भी हुई हो, परेशानी ना हुई हो। ज्यादातर केसेस में परेशानी होती है। यही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वकील साहब, कि बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेटिव हम लोगों के साथ में टॉक दिया हुआ है। आई होप इन कमिंग फ्यूचर्स ऑल्सो कि जो अच्छे टॉपिक्स हैं एथिक्स से रिलेटेड, उस पर भी आपसे हम ज्ञानवर्धन चाहेंगे हम लोग का। Anytime, anytime. I'm always there for my people. थैंक्स करिए सर। अरुण जी, मैं कुछ क्वेश्चन क्वेरी करना चाहूंगा प्रोफेशनल लॉ के इस्टेब्लिशमेंट के मुद्दे पे। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के मुद्दे पे आप कुछ आंसरिंग कर पाएंगे मुझे? हाँ, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बातें कर रहे हो आप जी। इन यूपी एस्टेब्लिशमेंट डेंटल, एक्ट ना? जी जी हाँ हाँ, कर सकते हो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। मैं तो यूपी के पे डेफिनेटली मैं ले लूंगा सेशन चाहिए तो। खाली वो मैं आपको लेकिन ओवरऑल बता दूं कि स्टेट ऑफ यूपी ने अगर मॉडिफाई किया है, क्योंकि सेंट्रल ने 2003 में लाया था, 2011 में अमेंडमेंट किया था। और जैसे आप लोगों को नॉलेज होगा कि हेल्थ सेक्टर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट में आने से स्टेट को पावर है हेल्थ का लॉ बनाने का और सेंटर को भी पावर है लॉ बनाने का, क्योंकि वो दोनों को पावर दिया है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है कि सेंटर अगर लॉ बना दे तो स्टेट के हाथ में होता है उसको अडॉप्ट करना या नहीं करना, और अडॉप्ट करने के टाइम पे उसको मॉडिफाई करना या सेम टू सेम अडॉप्ट करना। अभी अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करूं तो बहुत सारे स्टेट ने अडॉप्ट किया ही नहीं है। मैं आपको गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो अभी तक फुल फ्लेज अडॉप्शन हुआ ही नहीं है। यूपी ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन जो है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अगर ओवरऑल आप देखने जाओगे तो जो सेंटर ने बनाया था उसने काफी रेस्ट्रिक्शन के साथ क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन तक के बाद में पेनल्टी और पावर अथॉरिटीज को बहुत किया था। अब मुझे तो यूपी का रिफर करना होगा कि एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन क्या है, तो मैं आपको डेफिनेटली यूपी स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे गाइड कर सकता हूँ। एक क्वेरी था, मे बी हो सकता है उसका आंसर हो। नगर निगम, नगर महापालिका में एक लाइसेंस शुल्क के रूप में मांगा जाता है सालाना ना? क्या चीज है ये और कितनी लायबिलिटी है हम लोगों को, कितना नेसेसरी है इन चीजों को कराना? वो अगर शुल्क जो आपसे मांगा जाता है, अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उसका प्रावधान है तो, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन फी मांगी गई है हर सेंटर पे, मतलब डेंटल क्लिनिक हो, सादा ओपीडी सेंटर हो या आईपीडी सेंटर हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी सेंटर हो तो रजिस्ट्रेशन करना और रजिस्ट्रेशन फीस है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि नगर निगम आपके यहाँ महानगर पालिका उस एक्ट के अंडर में पैसे ले रही है या लोकल एक्ट बना के कर रही है, क्योंकि एक हायरार्की रहती है लॉस की। मैं आपको बता, हायरार्की में कैसे, पार्लियामेंट एक अलग लॉ बनाता है, असेंबली एक अलग लॉ बनाता है, छोटे जो गवर्निंग बॉडीज है जैसे नगर पालिका हो गई, ये लोग अपने लोकल लॉज भी बनाते हैं, इनके रूल्स रेगुलेशन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एनी रूल्स रेगुलेशन मेड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटी, if it is not coherent with the act available in the country, that is null and void. एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपके महानगर पालिका ने अपने लोकल लॉ में क्लिनिक के लिए एक शुल्क निर्धारित कर दिया है कि भाई हमको इतना रजिस्ट्रेशन आपसे मिलना चाहिए, और वही अगर आपके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो यूपी स्टेट का एक्ट है उसके कोहेरेंट में नहीं है, उसके वेवलेंथ में नहीं है, क्योंकि ये तो रूल्स रेगुलेशन,
तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि 2 जगह रजिस्ट्रेशन तो नहीं भरोगे आप, तो उसको चैलेंज कर सकते हो, उसको नल एंड वाइड कर सकते हो। क्योंकि मैं यूपी स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे कमेंट करना गलत होगा कि नगर पालिका का जो स्टैंड है रजिस्ट्रेशन फीस का, शुल्क का, वो कितना जायज है और किस लेवल तक जायज है। 1996 में जो नगर महापालिका ने या नगर निगम ने ये एक्ट बनाया था, तो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2006 में आया है, तो उसके पहले का है ये रूल। तो डबल चार्जेस नहीं होगा, बट चार्जेस तो अभी सिर्फ नगर निगम ही कर रही है ना। हाँ, तो फिर अभी इसीलिए जो 2016 का जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यूपी में लागू हुआ है, वो इन प्रॉपर तरीके से लागू हुआ है, किसी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। तो आई थिंक इसलिए वो लेते होंगे या व्हाट एवर, आई डोंट नो कि क्या है, बट कितना सही है, क्या नगर निगम हम लोगों से जो भी प्रोफेशनल सेंटर्स हैं उनसे लाइसेंस शुल्क के रूप में कोई चार्ज कर सकती है, करना लाइसेंस चाहिए? के रूप में देखो, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो अलग है, जो नगर पालिका के अंडर में है, वो स्टेट के लेवल का एक्ट है। लेकिन नगर पालिका उसको इम्प्लीमेंट करके हर शॉप से, हर एस्टेब्लिशमेंट से एक शुल्क लेती है। उसको कई जजमेंट ऐसे आए हुए हैं कि हेल्थ सेक्टर उस एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आता, मतलब हेल्थ सेक्टर में डेंटिस्ट आ गए, डॉक्टर्स आ गए, वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं आता। ऐसे जजमेंट्स आए हुए हैं। अब मैं यूपी का तो जब तक थोड़ा सा और स्टडी नहीं करूं मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कोई शुल्क नहीं भर रहे हो और नगर पालिका में शुल्क भर रहे हो, तो आपको आरटीआई एप्लीकेशन डालनी चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए अंडर व्हाट लॉ प्रोविजन हेल्थ सेक्टर कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर द नगर पालिका। क्या होता है आरटीआई के अंदर, जब उनके लोग आंसर देते हैं तो उनकी लीगल टीम को कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए गली कैंटी होती है, क्योंकि जब आरटीआई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार करके देखिए, आपको ज्यादा आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, तो मैं कर दूंगा यूपी में आपके लिए, यहाँ से बैठे बैठे। नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी को? डॉक्टर दीपक, किसी को क्वेश्चन? कोई वैसे लंबा कोई टाइम हो प्रॉब्लम गया। नहीं है। हाँ, फ्यूचर में आप लोग कोई बड़ा, चूंकि अब आप लोगों ने सुना है, तो आपके हाँ, 216 लोगों ने या 236 लोगों ने रजिस्टर किया था, तो आप लोगों के थ्रू उन तक तो बातें पहुंच सकती है। फिर फ्यूचर में अगर कोई टॉपिक पे अगर आपका इंटरेस्ट रहे तो आप बताइएगा, मैं फिर 200 लोगों के लिए, कि मेहनत तो मुझे उतनी करनी है, तो मैं एक आधे टॉपिक पे बोल दूंगा तो आपके कलीग्स को बेनिफिट हो। मैं इतनी चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई एक्सटॉर्ट नहीं कर पाए, आप लोगों से गलत पैसा उगाही नहीं कर पाए, जो हर स्टेट में कॉमन हो चुका है। छोटी छोटी चीजों की धमकियां दिखी होती है। मेरा एक ही है कि आप लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो जाए। मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत चीजें मैं आपसे सीखता हूँ, लेकिन बहुत कुछ चीजें हैं जो हम नहीं जानते और जिसकी वजह से हम डर के पैसे देते हैं, उसको जरा बंद करना है। क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविस्ट बढ़ने वाली हैं। आप और हम सब जानते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट बढ़ गए हैं, एंटी सोशल लोग बढ़ गए हैं, और खास करके यूपी में तो हर घर में पॉलिटिशियन है, तो वहां तो तकलीफें ज्यादा है। तो आप लोग को उसका एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नॉलेज होगा। तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि, मैं नहीं बोलता कि 100% आप बच जाओगे, लेकिन 80-70% भी बच गए तो काफी बच गया। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर बस सचिन, आखिरी में डॉक्टर जाते जाते सचिन। मैं एक एडवाइस देके जाऊंगा चतुर्वेदी साहब, कतारिया साहब, सचिन एंड ऑल मेरे कलीग को। मैं सेशन शुरू होने के पहले आप लोगों के डिस्कशन सुन रहा था कोविड-19 से और लाइफ से लेके रिलेटेड भी बातें सुन रहा था, और चूंकि कई लोग सेल्फ पेन इन्फ्लिक्टेड होंगे, कई लोगों ने फेस किया होगा। एक चीज मैं मेरा पर्सनल अनुभव बताता हूँ, और मैं हर सेशन में बोलता हूँ क्योंकि मेरा ये पर्सनल अनुभव है। डॉक्टर मैं भी रहा हूँ, अभी एडवोकेट हूँ, एमडी किया हूँ। मुझे भी पिछले साल कोविड होके गया था, मैं भी वैक्सीनेटेड था, मेरा एंटीबायोटिक टाइटर काफी अच्छा था, लेकिन मेरा मिसकंसेप्शन था कि मुझे वापस नहीं होगा। मेरे घर में कोविड मेरे बड़े भाई को हुआ, 1 साल एल्डर था मेरे से। मेरे डैड को हुआ, मैं उसको एडमिट किया हूँ, मेरे डैड को एडमिट किया हूँ, मेरी भाभी को एडमिट किया हूँ, मेरे भांजे को एडमिट किया हूँ, और फिर मैं एडमिट हुआ हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि केयरलेसली प्लीज मत लीजिए। भले आपको एंटीबायोटिक टाइटर पॉजिटिव होगा, भले आप वैक्सीनेटेड होंगे। मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने अपने फादर को लूज किया, मैंने अपने ब्रदर को लॉस्ट किया लास्ट मंथ, अप्रैल मंथ में। आई लॉस्ट माई ब्रदर, 57 ईयर्स का था। मेरे डैड गए,
सिर्फ ये न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन की वजह से, जेनेटिकली मैं भी था, मेरे पास एंटीबॉडी टाइटर्स हाई होने के बाद भी मुझे भी 2 टॉसी लगे थे। मैं साइटोसोलिक स्टोम में था, ARDS में था, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई केम बैक। बट लेकिन एक अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूँ कि तब से मैंने लेसन लिया कि नो, यू कैन नॉट बी केयरलेस विद एनीथिंग, बिकॉज ट्रीटमेंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं, सब सिम्टम पे चल रहे हैं, जो मिलता है वो ठोकते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली डेस्टाइन्ड पे हमको बिलीव करना होता है। लेकिन कुछ चीजें जो हमारे हाथ में करना चाहिए, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग बहुत क्लोज हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का क्वेश्चन ही नहीं है आपको, आप माउथ टू माउथ काम करते हो, तो आपको काफी प्रिकॉशन लेना है। मैं नहीं बोलता पीपी किट कितना पहनते हो और या मास्क कितना लगाते हो, लेकिन यू हैव टू रियली थिंक ऑन दैट। डोंट बी ओवर केयरलेस व्हाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट, बिकॉज यू डोंट नो द पेशेंट इज बीन पॉजिटिव, इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, विद व्हाट रीजन। एपिडेमिक के टाइम पे, पेंडेमिक एक्ट पे मैंने डेंटिस्ट्री के लिए काफी लेक्चर लिया था, क्योंकि तब सोशल डिस्टेंसिंग थी, अथॉरिटी नोटिस भेजती थी आप दवाखाना खोलो। आई हैव डन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट टाइम। लेकिन मेरा ये पर्सनल अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लाइफ इज वेरी प्रीसियस एंड वी शुड रियली टेक केयर ऑफ। With this, I really thank all the people here who have heard me patiently for almost 2 hours. I was amazed to see that all the people are, hardly barring 1 or 2 people, every people are still there for 2 hours. On a webinar, it is really greatness of the association. Thank you very much. Thank you. थैंक sir. यू अरुण जी। एनीथिंग और कोई क्वेश्चन? तो काफी हालांकि लेट भी हो गया है। नहीं, डॉक्टर सचिन कंक्लूड करिए। कंक्लूड तो ओके सर। आई रिक्वेस्ट टू आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर टीपी सर, प्लीज फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क एंड वोट ऑफ थैंक्स। So thank you, sir. First, I would like to thank Dr. Arun Misra, who has given his consent for how we can generate a consent for the medical purposes. You have given a excellent lecture, one of the excellent lecture. I was not so serious about it because many of persons, I have asked from them that they have registered, but probably they have not joined. That it is a simple lecture and all that thing. But by listening yours or your everything, I think it is very suitable for us. And in future, definitely many 100 and 1,000 they will attend you. I can assure you in future lectures. Thank you for giving me such a beautiful things. I would like to give thanks to our past president, Dr. S.K. Katharia, who is a member of DCI and EC member of DCI. He used to deal such type of cases in DCI along with me when I was in DCI, Dental Council of India. And I would like to give thanks to our secretary who has organized this program. And I would like to give thanks to Lakshmi Kantji and Udayji, who has organized this program for us. And future, we will definitely will convey that things and everything will go smoothly to every dental surgeon. We'll convey our myself sir also and your expertise. And you are one of the excellent orators. So it is very nicely you have tell everything in a simplest way. Whatever we can, how can we understand in that way? So thank you. और Dr. Sachin, आप conclude करते हैं फिर. Thank you. Thank you, President sir. A lots of thanks, Dr. Arun Misra ji and Dr. Katharia sir. आप लोगों ने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक हम लोग को दिया और बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी आपको कि आपने एक अच्छा सेशन हम लोग के लिए इस्टेब्लिश किया, एक बनाया। और इन फ्यूचर भी डॉक्टर अरुण जी के साथ और डॉक्टर कथारिया सर के साथ मिलके कुछ एक अच्छा हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे, जिससे कि हम पैनल डिस्कशन के रूप में और जो भी चीजें हैं, चाहे कंसर्न लेटर का मैटर हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट का मैटर हो, उसको अपने मेंबर्स के लिए, मुझे लगता है कि हमारे सभी मेंबर्स काफी थक भी गए हैं और काफी उन्होंने एंजॉय किया है इन चीजों को लेके, नॉलेज को गेन करके। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, लक्ष्मीकांत जी स्पेशली आपका भी। थैंक यू और बाकी मेंबर्स को जो भी अब तक बने हुए हैं, 13 लोग हम लोग बने हैं अभी तक, रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा हम लोग सभी लोग को समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग इस तरह के प्रोटेक्शन नहीं रख पाए अपने पास, उनको आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह के प्रोटेक्शन को रख के और अपनी प्रॉपर तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस प्रोफेशन में काम लेना चाहिए। तो काफी रात हो चुकी है,
सबका डिनर भी हमको लगता है डिस्टर्ब हुआ Thank you, होगा, तो सभी लोगों को हैव ए गुड नाइट एंड ओके, Thank you all. Thank you all. मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू अरुण जी, Thank you टीपी all. सर के सोने का टाइम हो रहा है, सर्फी से Thank जल्दी you. जल्दी। Thank you very much. ओके सर, ओके, हैव अ गुड नाइट। Okay, okay, Good night. okay. Good night. Good night. हाँ। Right.